My dear students, today I am discussing about first part of your rotatory motion, which is nothing but center of mass. Okay, so we shall discuss about what is the center of mass here. Okay, so now just see here in this center of mass. First of all, we should know some of the basics regarding center of mass here. Okay, so what are the basics regarding center of mass? We shall discuss here now. What are the basics regarding center of mass? Now you can just see here. Let me consider three parts here. This is part A. This is 3 points. There is part A, part B, and part C. I am considering. See here. I am taking a disc. मैं यहाँ पर एक डिस्क ले रहा हूँ जिसके अंदर 3 पॉइंट्स को मैं कंसिडर करूंगा. पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी. एंड ये जो डिस्क है ना, दिस इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड. ओके, दिस डिस्क इज रोलिंग ऑन द ग्राउंड हियर. ओके, तो अगर ये डिस्क ग्राउंड के ऊपर रोल कर रहा है तो what is the path followed by A, B and C? Okay, we shall discuss here now. अगर ये पॉइंट को अगर ऑब्जर्व करेंगे, जब कभी भी डिस्क रोल हो रहा है यहाँ पर ग्राउंड के ऊपर, ये पार्ट किस तरह जाएगा? ये पार्ट जाएगा इस तरफ. ओके, so the A part will move, A part will rotate like this. Now if you take a B part, so B part will be here, and if you take a C part is having a special path which is a straight line path, if you can observe here now. So this is point A, again point B, and this is point C. Okay, here if you observe, ये दोनों को अगर observe करें तो point A और point B, they are called as rotatory motions. They are following a rotatory path, whereas point C, if you consider, this is called as translatory motion, or it can also be taken as translatory path. What is the meaning of translatory motion? Translatory motion का मतलब क्या है? It is free from rotation. It is free from rotation. Okay, so C is going in a straight line. It is called as free from rotation. So therefore, what is the center of mass? What is the center of mass here? Center of mass is nothing but C. Okay, center of mass क्या है? कौन सा पार्ट को center of mass बोलते हैं? The path of a point within a disk which follows a translatory motion is called as center of mass. The motion of that point is considered to be the motion of the whole body. तो हर बॉडी के अंदर एक ऐसा पॉइंट रहता है. There is one point within a body, or sometimes outside the body also. There is a point within a body or outside the body, the motion of which represents the motion of a whole body, and that point moves in a translatory motion. Translatory means free from rotation. So बाकी के जो पॉइंट्स है ना, ये रोटेट हो रहे इस तरफ, रोटेट होते हुए आगे बढ़ रहे. मगर there is one point in the body, within the body, inside the body, okay, which is going in a translatory motion. For example, here, sorry. Okay, so this is a translatory motion here. Next, if this is a ring, what happens? If this is a ring, what happens? If this is a ring, then also this is a point at the center of the ring only, which is going in a translatory motion. Okay, which is going in a translatory motion. That means this point is outside the ring here. Okay, outside the ring. Say when you are very small, you might have seen there is one instrument called as boomerang. Okay, there is one instrument called as boomerang whose shape is like this. Okay, whose shape is like this. Okay, if you throw this boomerang, it will rotate and come to the same point. You know, it goes and rotate in a circular motion and rotatory motion. It comes to your place only. That means here center of mass कहाँ पर है इसका? इसका center of mass कहीं इधर है. Exactly in between these 2 points here. This is the center of mass. So center of mass can be outside the body also, because this is the body. This is called as a boomerang. Okay, and center of mass is outside the body here now. Okay, this is not inside the boomerang. Here it is in the middle. Okay, so that is called as center of mass. Why? Because when you throw that, all the points, अगर एक point इधर ले लो, you have taken one point here at this place here. At this place here, you are taking one point. If you rotate, that point will go and it will return back. If you take B point, B also will go and return back. There is one point C which goes and comes back in a translatory motion. इसको बोलते हैं translatory motion, which is free from rotation. ठीक है ना? Okay, which is
free from rotation. This is called as translatory motion. So this is called as center of mass here. I think you got an idea about center of mass. Now how can you find out that a center of mass? Okay, अभी यहां पर देख लो, एक बॉडी है मास m1 और एक बॉडी है मास m2. ये दोनों बॉडीज के बीच में एक सेंटर ऑफ मास रहता. There is one center of mass. Okay, and we have to find out that center of mass. So this is an origin. यहां पर origin ले लिए हम. Body of mass m1 is at a distance of x1. Body of mass m2 is at a distance of x2. और center of mass कितनी दूर पे है? xc. xc दूर पे center of mass है. और center of mass ये है. This is called as center of mass. From mass m1 to center of mass the distance is d1. From m2 to center of mass the distance is d2 यहाँ पर. So you have to understand one concept here. क्या है वो? That is called as principle of moments बोल के एक concept है. इसको समझना जरूरी है. प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का मतलब क्या है? वी शैल डिस्कस नाउ. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स? फॉर एग्जांपल आई एम टेकिंग वन स्केल. मैं यहां पर क्या कर रहा हूं? यहां पर एक स्केल ले लिया. आई हैव टेकन वन स्केल हियर. ओके, नाउ ऑन दिस स्केल आई एम टेकिंग वन बॉडी. आई एम टेकिंग वन बॉडी एट दिस प्लेस, अनदर बॉडी एट दिस प्लेस. ओके, एंड नाउ I'm taking one mass which is attached at this place. Okay, so I have taken two masses. यहाँ पर क्या करो मैं? यहाँ पर एक मास ले लिया m1, यहाँ पर एक मास ले लिया m2. इस मास से इस मास, ये मास जो है थोड़ा बड़ा है. Okay, तो where is the wedge you have to keep so that it is getting balanced? So at this place you have to keep a wedge because this is a larger mass, this is a smaller mass. So balancing point किधर रहता? Where will be the balancing point? The balancing point here, the balancing point will be at this place. Okay, तो यहाँ पर balancing point यहाँ पर रहेगा वो, where it is getting balanced. ठीक है, this is called as a balancing point. This is more mass, so balancing point थोड़ा right side चले जाएगा. Now what I am doing is इधर से इधर तक जो है ना डिस्टेंस d1 है और इधर से इधर तक जो है ना डिस्टेंस d2 है. तो बैलेंसिंग पॉइंट इज एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ मास. ठीक है, दिस एग्जैक्टली एट द सेंटर ऑफ मास. सो हियर यहां पर कौन सा फोर्स एक्ट कर रहा? व्हाट इज द फोर्स एक्टिंग एट दिस प्लेस एट द लेफ्ट साइड? यू जस्ट रिमेंबर दैट m1g इज एक्टिंग डाउनवर्ड्स हियर. यहां पर m2g एक्ट कर रहा डाउनवर्ड्स. सो दिस इज फोर्स एंड दिस इज आल्सो फोर्स. विद व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. ओके, दिस इज व्हाट टाइप ऑफ फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स. नाउ प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स का मतलब क्या है मालूम? टॉर्क एक्टिंग ऑन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन is equal to torque acting in the clockwise direction, anti-clockwise direction and clockwise direction. Torque acting in anti-clockwise direction is equal to torque acting in clockwise direction. So this is anti-clockwise direction, this is said to be clockwise direction. Torque का मतलब क्या है? Force into distance. F1 d1 is equal to F2 d2. F1 के प्लेस में क्या है? m1g d1 is equal to m2g d2. Okay, तो यहाँ पर क्या चीज कैंसिल होने वाला है? g getting cancelled here. What is left? m1 d1 is equal to m2 d2. This point you have to remember here. This is called as principle of moments. ये 9th क्लास में आप लोगों ने पढ़ लिए होंगे. ये छोटे छोटे बच्चों को भी मालूम है कि principle of moments क्या है. The same concept we are using here. Okay, this principle of moments concept हम अभी यूज करें यहाँ पर. Okay, we are using now in the case of center of mass. यहाँ पर देख लो, this is an origin, center of mass x2 distance के पास है और we are using the same principle of moments यहाँ पर यूज करेंगे. तो प्रिंसिपल ऑफ मोमेंट्स यूज करेंगे तो क्या होता? इट इज m1 d1 इज इक्वल टू m2 d2. ओके, सो व्हाट इज d1 हियर? अगर d1 मालूम करना है तो क्या करेंगे? सो d1 इज नथिंग बट हियर xc minus x1. दिस इज xc एंड दिस इज x1. xc में से x1 अगर निकाल देंगे तो यू गेट d1. एंड हियर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ d2? d2 किस तरह मालूम करेंगे? d2 x2 minus xcm. ये पूरा x2 है, इसमें से xcm निकाल देंगे. सो x2 minus xc is called as d2. Now you are substituting these values here. So m1 d1 के प्लेस में क्या लिखेंगे? xc minus x1 और d2 के प्लेस में क्या लिखेंगे? x2 minus xc. xc is nothing but the distance of center of mass from the origin. ठीक है? I will expand this one now. What are you going to get now? Let us see. m1 x1 minus m1 xc minus m1 x1 which is equal to m2 x2 minus m2 xc. ठीक है? तो यहां पर xc को लेफ्ट साइड ले लेंगे तो क्या होता है? m1 प्लस m2 कॉमन आउट xc विच इज इक्वल टू, ये यहां पर ले लिए और इसको m1 x1 को राइट साइड भेज देंगे तो क्या होगा? m1 x1 प्लस m2 x2.
Therefore x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या होगा? x सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला हो गया m1 x1 प्लस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2. दिस इज कॉल्ड एज x सेंटर ऑफ मास ऑफ ए बॉडी. तो अभी सेंटर ऑफ मास मालूम करने का फॉर्मूला क्या है? इफ द ऑरिजिन इज आउटसाइड द टू बॉडीज, तो m1 x1 प्लस m2 x2 बाय m1 प्लस m2. दिस इज द फॉर्मूला टू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास. अगर दो बॉडीज ले लिए, अगर दो से ज्यादा बॉडीज ले लिए, देयर आर 3-4 बॉडीज, और देयर आर n नंबर ऑफ मासेस which are residing on the either side of the origin के पास, ना सिर्फ दो मासेस नहीं, दो से ज्यादा है, तो what are you going to write now for the center of mass? So x center of mass का फॉर्मूला हो जाएगा m1 x1 plus m2 x2 plus dash 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 divided by m1 plus m2 plus dash dash dash. ये हो गया. This is called as infinity. x center of mass for n number of bodies which are residing in the origin. तो x center of mass का फॉर्मूला तो आ गया. नेक्स्ट वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा? वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ इज नथिंग बट, यहां पर वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के प्लेस में क्या लिखेंगे? m1 v1 plus m2 v2 plus dash 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 divided by m1 plus m2 plus and so on. So just instead of xcm we write vcm, that's it. Or if you want to find out the acceleration of center of mass, you write m1 a1 plus m2 a2 plus dash dash and so on divided by m1 plus m2 plus and so on. So these are the formulas for velocity of center of mass, acceleration of center of mass. तो center of mass के बारे में तो आइडिया आ गया. Now एक छोटा एप्लीकेशन के बारे में बात करेंगे. सेंटर ऑफ मास का एप्लीकेशन. अगर सेंटर ऑफ मास मालूम करना है, नाउ द बॉडी इज रिसाइडिंग, तो यहां पर ऑरिजिन किधर है? वेयर इज द ऑरिजिन? यू नो, इफ यू शिफ्ट द ऑरिजिन, पहले यहां पर थी ऑरिजिन, कहां था? ऑरिजिन वाज आउटसाइड मास m1. नाउ इफ यू शिफ्ट द ऑरिजिन एग्जैक्टली ऑन मास m1, व्हाट हैपेंस? द सेम फार्मूला आई विल यूज. x सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट m1 x1 प्लस m2 x2 बाई m1 प्लस m2. अगर ये फॉर्मूला हम यूज करेंगे तो क्या होता है? व्हाट इज हैपनिंग? लेट अस सी. तो यहां पर x1 will become 0 because I have shifted this y axis exactly on that, means x1 will become 0, and from this origin x2, means from here to here distance is x2. Now if I shift the origin here, x2 will become the distance d between the two masses. ये दो masses के बीच का distance क्या है? d है. तो what is the new center of mass formula when you shift the axis from outside here? पहले origin इधर था, इसे यहां से यहां पर लेकर गए हम लोग, तो x1 तो 0 हो गया, ये पार्ट तो उड़ गया. तो what is left now? m2d divided by m1 plus m2. This is a new formula for center of mass. अभी center of mass का formula ये हो गया. अगर हम origin क्या कर रहे हैं? किसी एक mass के पास ले रहे हैं. तो previously I was taking the origin. कहां पे थे origin? Origin was outside. If I shift the origin, if I shift this origin from here to here, then what happens? x1 will become 0 and x2 will become the distance between the two bodies. अगर हम distance between the two bodies को अगर ले लिए, तो it is going to be okay. Hope you are understanding what I am telling now. So this is the next formula for center of mass का formula हो गया ये. ठीक है? Let us go for an application here. Now I am taking two rods. Okay? Rod 1 and rod 2. I have taken two rods. दो rods ले रहा हूं मैं, जिसका लेंथ जो है L1 है और एक रॉड का लेंथ क्या है? L2. Okay? So if the rod is having length L1 and L2, and here origin is at the first rod. Okay? So now this is taken as L1 by 2. And for example, the center of mass of the second rod is here, which is taken as L2 by 2. Okay, L2 by 2. So here, for example, at this place, if you observe, यहाँ पर क्या होगा? L1. तो ये यहाँ origin से यहाँ तक का distance क्या है? It is L1 plus L2 by 2. Because L1 by 2 plus L2 by 2 क्या होता है? यहाँ से origin तो यहाँ पर है, तो L1 by 2 plus L2 by 2. 2 is LCM. Then along the y-axis it is 0. Nothing is there. Only on x-axis I am taking. So what is the formula here? Mass is nothing but length into density. Mass is nothing but length into density, because here I am taking density as lambda. So from this you understand that mass is directly proportional to length. Mass is directly proportional to length here. Okay? अभी देख लो यहाँ पर हम क्या करेंगे? इसको समझो x1, इसको समझो y1, इसको समझो x2, इसको समझो y2. ओके? तो अभी हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है सेंटर ऑफ मास का? द सेंटर ऑफ मास का बेसिक फॉर्मूला हो गया m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2, because mass is directly proportional to length L1, mass m2 is directly proportional to length. See, the larger the length, the greater the mass. यहाँ पर हम rods ले रहे हैं ना, तो अगर ज्यादा लेंथ वाला रॉड ले लिए तो उसका मास ज्यादा होगा, अगर कम लेंथ वाला ले लिए तो उसका मास कम होगा. The mass is directly proportional to length in this case. So what is going to happen now? तो यहाँ पर एक चीज समझ में क्या आ रही है? x1 is going to be 0. ये पार्ट तो निकल गया. Okay, and what is m2? m2 I will take it as L2. And what is x2? x2 is this one.
L1 plus L2 by 2 divided by M1 plus M2 मतलब L1 plus L2. ओके, बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ, सो यहाँ पर क्या चीज कैंसिल होकर चले जाएगा, ये पार्ट चले जाएगा. तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ द टू बॉडीज L2 by 2 इज गोइंग टू बी द फाइनल फॉर्मूला. ये हो गया आपका सेंटर ऑफ मास ऑफ दीज टू रॉड्स. फॉर एग्जाम्पल आई हैव आस्क्ड वन प्रॉब्लम. तो प्रॉब्लम कैसा है, देयर इज अ प्रॉब्लम इफ L1 is equal to 8 centimeters and L2 is equal to 6 centimeters here. Okay, तो क्या करेंगे हम, find the center of mass. Okay, find the center of mass आके बोल दिया. तो क्या करेंगे center of mass मालूम करने के लिए, what are you going to do now? Just the simple thing is solution कर देंगे हम. X center of mass is nothing but L2 by 2 which is nothing but 6 by 2 which is nothing but 3 centimeters. That's it. ठीक है, तो तुम्हारा आंसर हो गया 6 centimeters यहाँ पर. Sorry, 3 centimeters will be the center of mass, because to find out the center of mass, what is the shortcut for a rods? Just L2 by 2, that's it. And this is the case where the rods are arranged according to the length. Okay, along the length the rods have been arranged here. Okay, then what is happening? Let us see here. Now, see if the rods are arranged in the form of T-shaped rods. तो यहाँ पर rods arrange करें मगर T shape के अंदर है. Then center of mass क्या होगा यहाँ पर इस केस के अंदर? Let us see here. For example, this is the point where origin lies. ये हो गया लेंथ L1 और इस रॉड का लेंथ क्या है L2. इसका सेंटर ऑफ मास किधर है, इधर है. ओके, तो फ्रॉम द ऑरिजिन व्हाट इज द लेंथ, लेंथ विल बिकम L2 by 2. तो यहाँ पर डिस्टेंस क्या होगा, L2 by 2 comma 0 along the x axis L2 by 2 because this is x axis and this is going to be the y axis. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया L2 by 2 और y axis के ऊपर ये 0 है. So this is let us imagine this is taken as x1 y1. This is taken as x2 y2. Now, how to find out the center of mass of this T-shaped rod from this origin? यहाँ से मालूम करना है. So how are you going to find out that one? Let us see here. Okay, so let us see here now. It's very simple. X center of mass, your general formula is m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. ठीक है, तो x center of mass का क्या हो गया अभी, m1 x1 मतलब 0, ये पार्ट तो उड़ गया because it is 0. Okay, तो what is m2? I told you that mass m1 is directly proportional to L1, mass m2 is directly proportional to L2. So we have to क्या करना है यहाँ पर, we have to replace masses with lengths here because it's a rod, that's it. It's not a cylinder or it's not a rectangle, it's a rod, that's it. Okay, तो m2 के प्लेस में डालेंगे L2 और x2 के प्लेस में डालेंगे L2 by 2. Okay, divided by m1 plus m2 means L1 plus L2. Okay, so what is the formula for center of mass here? L2 square divided by 2 into L1 plus L2. Okay, so this is going to be your shortcut formula which is ready now. ये हो गया तुम्हारा shortcut formula. Okay, example अगर solve करेंगे यहाँ पर, if L1 is equal to 6 centimeters and L2 is equal to 4 centimeters connected in T shape, तो find the center of mass बोल के पूछ रहा, find the center of mass बोल के पूछ रहा. तो सॉल्यूशन क्या होगा, वही सॉल्यूशन यहाँ पर शॉर्टकट मेथड तो रेडी है. तो L2 स्क्वायर, व्हाट इज L2 हियर, दैट इज 4 मींस 4 into 4, 4 स्क्वायर मींस 4 into 4 into L1 plus L2 means 6 plus 4 which is nothing but 10 here. Okay, 2 1s are 2 2s are 4, 2 1s are 2 5s are, so your answer is nothing but 4 by 5. So your answer is 0.8 centimeters. So where is the center of mass means, anything we have done, it's okay, everything is okay. तो देखो L2 स्क्वायर का मतलब क्या है, 4 into 4 by 2 into L1 plus L2. L1 is nothing but 6 plus 4, that is 10 here. Okay, so 2 to the 4, 2 to cancel, 2 5 are 4 by 5 which is nothing but 0.8 centimeters. Means यहाँ पर somewhere it will be center of mass here which is 0.8 centimeters from the origin. So like this we have to get the center of mass for the T-shaped body. Now let us imagine there are two discs here. दो डिस्क ले लिए जिसका रेडियस R1 है, जिसका रेडियस R2 है यहाँ पर. ओके, आई एम टेकिंग टू डिस्क्स ऑफ दिस शेप having different radius here. Okay, so how to find out the center of mass of these two discs here? See, यहाँ से यहाँ तक का रेडियस क्या है, L1 है और ये वाला डिस्क का रेडियस L2 है. ये origin which is taken as x1 y1. तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, R1 plus R2 and along the y axis it is 0. क्या होगा ये, this is x2 y2 at this place. ठीक है ना. Okay, so now let us see what is going to happen. So I am taking the origin at one of the two discs here. एक डिस्क के अंदर हम origin ले लिए, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, R1 plus R2. We have to add the radius of the two discs here. Now how to find out the center of mass? X center of mass is nothing but m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus
m2. So disk means what? Here mass is directly proportional to area. Okay, the greater the area, the greater the mass. डिस्क अगर ले लिया ना, जितना ज्यादा एरिया होगा उतना ज्यादा उसका मास होगा. दैट मीन्स मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पाई आर स्क्वायर. तो पाई भी कांस्टेंट हो गया, तो मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर. दैट मीन्स m1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r1 स्क्वायर. दैट मीन्स m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r2 स्क्वायर. ठीक है, तो यहां पर क्या करेंगे, x सेंटर ऑफ मास m1 x1 is 0, तो दिस पार्ट विल गो. व्हाट इज देयर नाउ, ओनली सेकंड पार्ट इज देयर. m2 के प्लेस में क्या लिखेंगे, r2 स्क्वायर लिखेंगे, और x2 के प्लेस में क्या लिखेंगे, r1 प्लस r2. ओके, सो यू कैन कंसीडर दिस एज कैपिटल R1 कैपिटल R2. अगर कैपिटल ले लिए तो R1 प्लस R2 ले लो. भाई m1 प्लस m2 इज नथिंग बट R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. ओके, so this is going to be our shortcut formula to find out the center of mass of the two disks having radius R1 and R2. For example, if R1 is equal to 4 centimeters and R2 is equal to 2 centimeters in these two disks, और क्या पूछ रहा, find the center of mass बोल के पूछ रहा. तो what are you going to do? What is the solution for this? How can you find out the solution? So देखो R1 4 है, R2 2 है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 स्क्वायर. R1 plus R2 is nothing but 4 plus 2 which is nothing but 6. R1 square plus R2 square is nothing but 4 4 जा 16 plus 2 2 जा 4. So 2 2 जा 4 into 4 into 6. यहाँ पर क्या होगा, 16 plus 2 which is nothing but 20. 4 1 जा 4 5 जा 20. So 6 by 5 which is nothing but 1.2. Okay, 1.2 centimeters will be the center of mass somewhere here. Okay, 1.2 centimeters के दूर पे है यहाँ पर. Okay, so like this you can find out the center of mass m1 x1. समझ में आएगा बात. So these are the two disks I am considering. So instead of two disks, if you take one disk is there, on the larger disk one smaller disk has been placed. Okay, एक larger disk के ऊपर अगर smaller disk रख दिए, तो how are you going to find out the center of mass? So larger disk के पास तो origin है, और smaller disk कितनी distance पे है? So larger disk is having radius r2, smaller disk is having radius r1. So this distance you have to find out. So center of mass of the larger to the center of mass of the smaller will become r2 minus r1, this distance. So it can be taken as x1 y1. This can be taken as r2 minus r1 comma 0, which is x2 y2. Okay. So what is our formula for center of mass? The same formula, m1 x1 m2 x2 divided by m1 plus m2. Okay. So यहाँ पर क्या चीज कैंसिल हो जाएगा? This is getting cancelled because x1 is 0. Okay. तो यहाँ पर m2 के प्लेस में क्या लिखेंगे? m2 is nothing but m2 is directly proportional to r2 square. Just now I told you. And m1 is directly proportional to r1 square. Just now I told you. तो यहाँ पर क्या करेंगे? m2 is nothing but r2 square और x2 is nothing but r2 minus r1. So कैपिटल लिए तो कैपिटल लेना है, अगर स्मॉलर लेना है तो स्मॉलर ही लेना है. Okay. So divided by m1 plus m2 which is nothing but r1 square plus r2 square. So this is going to be our final formula. So what is the difference between the previous formula and the next formula? Previous formula के अंदर radius add हो रहे थे यहाँ पर, okay? नीचे और numerator denominator same. Only radius was added at the beside. Now radius is getting subtracted. The simple shortcut formula here, okay? So अभी यहाँ पर if I take an example problem here, so how are you going to solve this example problem? Okay? Find the center of mass. If R1 is equal to 10 centimeters and R2 is equal to 5 centimeters. Okay, तो अगर इस तरफ दे दिया तो what are you going to do now? So x center of mass is nothing but R2 square. तो बड़ा वाले का रेडियस दे दिया 10 centimeters और छोटे वाले का रेडियस दे दिया 5 centimeters. तो अब यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करो, तो R2 square is nothing but 5 5 are 25. R2 minus R1. If this is R1 and this is R2, okay, R1 minus R2 होगा ये, because larger, smaller you take R1 and larger you take R2. R1 minus R2. ठीक है, कोई बात नहीं. तो हमको क्या करना है? नो प्रॉब्लम, वी नॉट चेंज हियर. सब ठीक ही है. R2 वाला बड़ा, R1 छोटा वाला है, तो R2 वी हैव टू टेक लार्जर इन द एग्जांपल ओनली. अगर R1 छोटा वाला अगर ले लिए तो R1 is 5 centimeters, R2 is equal to 10 centimeters. No problem. बड़ा वाला R2 कुछ भी ले सकते हैं. Naming we can do. Bigger one you can take R1, smaller one you can take R2. Doesn't matter. But you should subtract larger radius minus smaller radius. So larger is always larger one. So R2 square is nothing but smaller one. R2 is larger one. M2 x2. M2 x2. Okay. तो हम थोड़ा नेमिंग में गड़बड़ी कर दिया था.
बेहतर था अगर इफ यू टेक लार्जर वन एज R1 इट विल बी बेटर, आई थिंक इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड दैट ये अगर R1 ले लिए और ये अगर R2 ले लिए तो फिर क्या होता है देखो यहाँ पर. So this will become R1 minus R2 comma 0. There won't be any confusion I think now because first mass is larger one, second mass is smaller one. So यहाँ पर क्या करेंगे अभी देख लो थोड़ा सा. If you take a small thing is it is M1 plus M2 no. So X center of mass. So M1 X1 means larger body 0. Okay, and smaller body is having radius R2. Let us imagine. So M2 is nothing but R2. So R2 square. X2 larger minus smaller that means R1 minus R2. R1 minus R2 divided by M1 plus M2. M1 plus M2 मतलब R1 square plus R2 square. Okay, so always you should remember that R1 is greater than R2. बड़ा वाला R1 छोटा वाला R2. So यहाँ पर एक example problem हम कर सकते हैं इसको लेकर. If R1 is equal to 10 centimeters and R2 is equal to 5 centimeters, find the center of mass in this type of problem. A simple solution क्या है यहाँ पर, आसान तरीका क्या है इसको सॉल्व करने का. Just you need to substitute here. R2 is nothing but 5. 5 5 is 25. R1 minus R2 is nothing but what is happening here? This is 25. And R1 minus R2 is nothing but 10 minus 5, which is 5 here. And R1 square plus R2 square is nothing but क्या है? R1 is nothing but 10. So 10 square is nothing but 100. And R2 square is nothing but 25. So 25 into 5 divided by 125. So 25 1 times, 25 5 times. 5 ones cancel. So 1 centimeter. So where is the center of mass lying means from the origin it is lying at 1 centimeter, right? Now just here. So अब तक डिस्क के बारे में डिस्कस करें हम. अब स्फीयर के बारे में डिस्कस करेंगे. दिस इज आर द टू स्फीयर्स नाउ. ओके, इफ यू इमेजिन दीस टू बी टू स्फीयर्स, व्हाट इज गोइंग टू हैपन नाउ? तो स्फीयर का मतलब मास इज नथिंग बट वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. मास इज नथिंग बट वॉल्यूम का मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर इज नथिंग बट 4/3 pi r cube into rho. That means mass is directly proportional to r cube. ठीक है, तो mass is directly proportional to r cube. This one is r1 and this is r2. This is the center of mass from here to here. तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? r1 plus r2 comma 0. This is called as 0 comma 0. ठीक है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया x1 y1. This is x2 y2. Okay, now if you want to find out the center of mass, the same old formula we are using, m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. ठीक है, यही फॉर्मूला यूज करेंगे हम लोग. तो इसमें से ये वाला तो उड़ गया बिकॉज x1 इज 0. ओके, तो x सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट m2. अभी मैं क्या बोला? m1 is directly proportional to r1 square. m2 is directly proportional to r2 square because 4/3 pi and rho are constants. ठीक है, तो हम m2 के प्लेस में क्या लिखेंगे? r2 whole square. एंड x2 के प्लेस में क्या लिखेंगे? r1 plus r2. ठीक है, और m1 plus m2 के प्लेस में क्या लिखेंगे? r1 सॉरी क्यूब ना, सॉरी क्यूब यू हैव टू टेक हियर, नो नॉट स्क्वायर बिकॉज वॉल्यूम मींस क्यूब विल गेट 4/3 pi r cube. सो यहां पर भी r cube. सो r1 cube plus r2 cube. ठीक है, सो दिस इज गोइंग टू बी योर फॉर्मूला. द सिंपल थिंग इज अगर डिस्क ले लिए तो गेटिंग स्क्वायर हियर बिसाइड सेम है, तो स्क्वायर के प्लेस में क्यूब हो जाएगा इफ इट इज गोइंग टू बी ए if it is going to be a sphere. But this is a shortcut formula here. Okay, for example, if r1 is equal to 10 cube, if r1 is equal to 10 centimeters and r2 is equal to 8 centimeters. Okay, छोटे छोटे नंबर्स ले लो, छोटे छोटे वैल्यूज ले लो. r1 is equal to 3 centimeters, r2 is equal to 2 centimeters. Then how can you find out? Just radius अगर मालूम है तो we can find out the center of mass because these two spheres are touching each other. तो सेम यही फॉर्मूला के अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे. x सेंटर ऑफ मास विल बिकम हाउ मच? r2 होल क्यूब इज नथिंग बट 8 और r1 प्लस r2 इज नथिंग बट 5 हियर. दोनों ऐड करेंगे. r1 क्यूब प्लस r2 क्यूब इज नथिंग बट 3 3 9 9 3 27 प्लस r2 क्यूब इज नथिंग बट 8 हियर. ओके, तो इसको हम x सेंटर ऑफ मास इज नथिंग बट 8 5 40 और 27 प्लस 7 2 14 15 इज गोइंग टू बी 35. So 5 8 40 5 7 35. So 8/7 centimeters is going to be our answer. ठीक है, ये हो गया दोनों स्फीयर्स के बारे में. Okay, now we shall discuss about what is the meaning of shift of center of mass.
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? सो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है यहाँ पर? फॉर एग्जाम्पल यू आर टेकिंग वन डिस्क and you are taking another disk. Okay, this is a smaller disk. For example, this smaller disk, if you consider, and this is a larger disk, you consider. Okay, so let us imagine what is going to happen. अभी क्या होगा देख लेंगे. तो for example, this is the origin. Now I am taking कोऑर्डिनेट सिस्टम. अगर ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस. ओके, नाउ हाउ टू टेक द कोऑर्डिनेट सिस्टम हियर? सो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है मालूम? कटिंग स्मॉलर डिस्क फ्रॉम द लार्जर. शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास टेक्स प्लेस. तो अगर बड़े डिस्क में से छोटा सा डिस्क को अगर निकाल दिए तो व्हाट हैपेंस टू द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? अगर देख लो पहली तरह, पहले तो ये देख लो यहां पर. पहले सेंटर ऑफ मास जो है ना बड़े, तो व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस डिस्क? इट वाज एट दिस प्लेस, ओरिजिन के पास था. तो हम क्या करें, छोटे से पार्ट को काट करके निकाल दिए, कट करके निकाल दिए. तो अगर इस पार्ट को अगर कट करके निकाल दिए तो क्या होता है यहां पर? इफ यू रिमूव द कटिंग पार्ट, द रिमेनिंग पार्ट विल बी लाइक दिस. So what happens when you remove this part? There is a shift of center of mass. Previously center of mass इधर था, अभी center of mass यहां पर शिफ्ट होगा. ठीक है, and this distance is called as shift of center of mass. क्योंकि यहां का टुकड़ा निकाल दिए, यहां का एक पार्ट कट करके निकाल दिए, तो center of mass यहां पर जो था, because here mass is larger, here mass is lesser, you have removed this one, so weight will fall little bit back side. तो शिफ्ट होगा center of mass C1 से C2. अभी यहां पर शिफ्ट को मालूम करेंगे. यहां पर किस तरह मालूम करेंगे शिफ्ट? For example, this is taken as m1 and the part which has been cut is taken as m2. तो ये वाला रेडियस क्या था पहले वाला? So इसका रेडियस यहाँ से यहाँ तक, for example, it is r1. तो ये जो टुकड़ा था इसका रेडियस r2 था. तो what is the remaining part here? No, यहाँ से यहाँ तक, from here to here, what is the distance? Distance is r1 minus r2 comma 0. This is x1, y1. This is x2, y2. So ये हो गया r1, ये हो गया r2. The remaining part from here to here is r1 minus r2 comma 0. So coordinates भी हमारे पास आ गए. अभी शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या है? व्हाट इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज फॉर शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? प्रीवियसली वी यूज्ड टू राइट m1 x1 plus m2 x2 divided by m1 plus m2. The same formula we are this formula we are using, no? Previously ये फॉर्मूला यूज कर रहे थे, मगर now what are we doing now? This part has been removed. Smaller mass has been removed. Okay, so let us take from larger mass. Okay, m2 is removed. Removed means subtracted. So what you have to do, instead of taking positive sign here, you have to consider minus sign. Okay, that's it. There's a small difference between center of mass and shift of center of mass. तो यहाँ पर ऐड करते थे पहले, अभी क्या करेंगे? सब्सट्रैक्ट करेंगे. ठीक है, तो अभी x1 वैल्यू तो चले गया ना, x1 is going to be 0. तो यहाँ पर x1 is 0, तो ये पार्ट उड़ गया. तो x शिफ्ट क्या होगा यहाँ पर? minus m2. I told you mass is directly proportional to radius, no? Because this is a disk. Okay, तो m2 के प्लेस में डालेंगे r2 होल स्क्वायर और x2 के प्लेस में क्या लिखेंगे? r1 माइनस r2. ओके, अब यहां पर m1 माइनस m2 के प्लेस में क्या लिखेंगे? r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला. दिस इज अ शॉर्टकट फॉर्मूला, बट आई विल क्रिएट वन मोर शॉर्टकट फॉर्मूला फ्रॉम दिस शॉर्टकट फॉर्मूला. तो शॉर्टकट ऑफ शॉर्टकट विल डिस्कस हियर नाउ. तो यहां पर क्या करेंगे? थोड़ा मैथ्स को यूज करेंगे, मैथ्स के कॉन्सेप्ट्स को यूज करके क्या करेंगे? माइनस r2 स्क्वायर वी राइट लाइक दैट ओनली. r1 माइनस r2 डिवाइडेड बाय a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इज नथिंग बट a प्लस b इनटू a माइनस b. r1 प्लस r2 इनटू r1 माइनस r2 अगर डाल दिए तो क्या होगा? यहाँ पर ये पार्ट भी कट होके चले जाएगा. तो x शिफ्ट इज गोइंग टू बी हाउ मच? माइनस r2 स्क्वायर डिवाइडेड बाय r1 प्लस r2. So this is going to be your shortcut formula to find out the shift of center of mass in this type of problems here. Okay, इस तरह के problems को अगर center of mass मालूम करना है तो ये हो गया इसका shortcut formula. Okay, let me take one small problem here. Okay, let me create one small problem. यहाँ पर एक problem create करेंगे. If R1 is equal to 10 centimeters and R2 is equal to for example क्या करेंगे? थोड़ा value अगर 5 centimeters ले लिए. Okay, तो what is the shift of center of mass? R1 R2 अगर 5 ले लिए तो एक डिस्क है जिसका रेडियस 10 सेंटीमीटर है, उसमें से एक डिस्क जिसका रेडियस 5 सेंटीमीटर है उसको निकाल दिए. तो व्हाट इज द शिफ्ट? फाइंड x शिफ्ट. सो व्हाट इज द फॉर्मूला? व्हाट इज द सिंपल मेथड हियर? यहाँ पर सिंपल मेथड क्या है? x शिफ्ट इज नथिंग बट r2 स्क्वायर. r2 स्क्वायर इज नथिंग बट 5 5 25. r1 प्लस r2 इज नथिंग बट 15.
So 5 3s are 15, 5 5s are 25. Your answer is 5 by 3 centimeters. That's it. Okay. So shift of center of mass when you cut a smaller disc from a larger disc. Okay. Next similarly उसी तरह का प्रॉब्लम और एक भी करेंगे हम, जिसके अंदर if you consider this is a larger sphere. I am taking a larger sphere. Okay. So larger sphere में से छोटे sphere को निकाल देंगे. Okay, you take a larger sphere and taking a smaller sphere is removed from the larger sphere. Then what is the shift of center of mass? यहाँ पर इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे. Let us take this is a coordinate system. तो ये हो गया origin 0, 0 और ये हो गया कितना, यहां से यहां तक अगर r1 है छोटा वाला रेडियस, बड़ा वाला रेडियस r1 है, ये r2 है, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, r1 माइनस r2 कामा 0, r1 माइनस r2 कामा 0. दिस इज x1 y1 एंड दिस इज x2 y2. ठीक है. अगर ये यहां से यहां तक का रेडियस r1 है, ये रेडियस r2 है, अगर इसको निकाल देंगे तो बाकी का डिस्टेंस क्या होगा, r1 माइनस r2 कामा 0, x1 y1 x2 y2. सो अ स्मॉलर sphere removed from larger. Okay, so what is the shift of center of mass? Okay, what is the shift of center of mass? यहां पर मैं बोल दिया आप लोगों को, mass is directly proportional to r cube. क्यों? Mass is nothing but volume into density. Volume is nothing but 4 by 3 pi r cube into rho. So all are constants, only radius is the variable. So mass is directly proportional to radius whole cube. तो अभी मैं बोला था ना आप लोगों को, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला क्या है, x शिफ्ट इज नथिंग बट m1 x1 माइनस m2 x2 डिवाइडेड बाय m1 माइनस m2. जस्ट प्लस टू बी रिप्लेस विद माइनस, उतना ही है यहाँ पर. दैट इज द कॉन्सेप्ट हियर. यहाँ पर x1 तो 0 हो गया, तो ये पार्ट उड़ गया. माइनस m2 विल बिकम r2 होल क्यूब और x2 क्या हो गया, r1 माइनस r2. तो m1 माइनस m2 विल बिकम हाउ मच, इट विल बिकम r1 क्यूब माइनस r2 क्यूब. ओके, ये हो गया आपका शॉर्टकट फॉर्मूला. बट वी विल क्रिएट वन मोर शॉर्टकट फ्रॉम दिस. शॉर्टकट ऑफ शॉर्टकट विल क्रिएट. सो अभी क्या होगा इसका फॉर्मूला, x शिफ्ट विल बिकम हाउ मच, माइनस r2 क्यूब, वैसे रख दो. दिस इज r1 माइनस r2. सी a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दिस इज द फॉर्मूला हियर. ओके, a क्यूब माइनस b क्यूब का फॉर्मूला क्या है, a माइनस b इंटू a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर. दैट्स इट. तो यहाँ पर एक चीज बेनिफिट क्या है मालूम, एक चीज उड़ जाती है यहाँ पर, ये चले गया. तो हमारा शॉर्टकट फॉर्मूला अभी क्या होगा, व्हाट इज द न्यू शॉर्टकट वी आर गेटिंग फ्रॉम दिस, सो दैट बाय सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स इट बिकम्स वेरी इजी फॉर अस. तो नाउ x शिफ्ट विल बिकम हाउ मच, माइनस r2 क्यूब डिवाइडेड बाय r1 स्क्वायर प्लस r1 r2 प्लस r2 क्यूब. ओके, लेट अस सॉल्व वन प्रॉब्लम आल्सो. यहाँ पर एक प्रॉब्लम भी करेंगे हम. अब प्रॉब्लम क्या है, if r1 is equal to 10 centimeters and r2 is equal to 5 centimeters, okay, find the shift of center of mass मालूम करेंगे. ठीक है, तो किस तरह मालूम करेंगे, शॉर्टकट फॉर्मूला इज x shift is equal to minus r2 cube minus 25, r2 cube होगा ना, minus 125 because 5 5 are 25, 25 5 are 125 and r1 square means 100 plus r1 r2 means 10 5 are 50 plus r2 cube r2 square. Okay, square का मतलब क्या है, 25. Okay, so what are you going to get now, x shift is nothing but minus 125 divided by 175. Okay, so 25 3 times, so 25 कितने times, 4 plus 3 7 times. So x shift is nothing but minus 3 by 7 centimeters. Okay, तो इस तरह हम मालूम कर सकते हैं shift of center of mass. Now you can just see here, और एक प्रॉब्लम हम करेंगे. Let us take one rod here. We are taking one rod. Okay, let us take the length of the rod is L. Now what I am going to do, you know, हम क्या कर रहे हैं अभी, this rod has been converted into a circle. अगर इस रॉड को हम सर्किल की तरह कन्वर्ट करेंगे तो क्या होता, see I am taking one rod of length L and I am converting into a circle. Previously where is the center of mass of the rod, रॉड का सेंटर ऑफ मास किधर था, यहां पर था सेंटर ऑफ मास ऑफ द रॉड C1, बट नाउ आई हैव कन्वर्टेड इनटू ए सर्कल. ओके, तो अभी सर्कल का सेंटर ऑफ मास किधर है, यहां पर है सेंटर ऑफ मास. ठीक है,
दिस इज कॉल्ड एज सेंटर ऑफ मास ऑफ द सर्कल हियर. नाउ अभी शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, सेंटर ऑफ मास पहले यहां पर था, अभी सेंटर ऑफ मास इधर चले गया. देन व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास, सी दिस टोटल डिस्टेंस विल बिकम x शिफ्ट, इसका मतलब रेडियस. सो अगर रेडियस मालूम करे तो सेंटर ऑफ मास आ गया. ओके, सो प्रॉब्लम क्या था, इफ रॉड कन्वर्टेड इनटू सर्कुलर रिंग, फाइंड द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास. पहले सेंटर ऑफ मास रॉड का इधर था, अगर रॉड को मोल्ड करके अगर सर्किल की तरह करा दिए तो सर्किल का सेंटर ऑफ मास इधर आ गया. तो हाउ विल यू फाइंड आउट द सेंटर ऑफ मास हियर? सो सिंपल थिंग इज x सेंटर ऑफ मास, x शिफ्ट है ना. सो व्हाट इज x शिफ्ट? x शिफ्ट इज नथिंग बट रेडियस. तो व्हाट इज द रेडियस नाउ? पूरा लेंथ जाके सर्किल बन गया ना, तो लेंथ हैज बिकम सर्किल व्हिच इज सर्कमफरेंस. दैट मींस रेडियस इज इक्वल टू l by 2 pi. ओके, तो व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? l by 2 pi. ठीक है, इट्स गोइंग टू बी हाउ मच? l by 2 pi. Is it clear? Okay, for example if the length of the rod is 44 centimeters. Okay, अब ये प्रॉब्लम भी करेंगे हम. प्रॉब्लम, if length is 44 centimeters, find x shift. मतलब ये लेंथ ऑफ द रॉड 44 सेंटीमीटर था, अगर उसको सर्किल में कन्वर्ट कर दिए तो व्हाट इज द शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? उसका सोल्यूशन क्या होगा यहाँ पर? सो x शिफ्ट इज नथिंग बट रेडियस व्हिच इज नथिंग बट l by 2 pi, which is nothing but l is how much? 44 divided by 2 into 22 by 7. 7 ऊपर आएगा, 22 1 times, 22 2 times, 2 2 चले गया, तो 7 centimeters is going to be our shift of center of mass. Okay, the simple problem like this. Next, अभी देखो, I have taken two okay, there were two marbles. Okay, on two marbles or two identical marbles, identical मतलब same type of marbles. If on two identical marbles, if third marble is placed, what is the शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास? ठीक है, अब हम क्या करें मालूम, यहां पर ऑलरेडी टू मार्बल्स थे साइड बाय साइड, और दोनों का सेंटर ऑफ मास किधर था? यहां पर था. x किधर था सेंटर ऑफ मास? दोनों के बीच में. आइडेंटिकल मार्बल्स मतलब बीच में रहता सेंटर ऑफ मास. अभी हम क्या करें, और एक मार्बल लेके इन तीनों के ऊपर रख दिए, ये दोनों के ऊपर और एक मार्बल रख दिए. ओके, तो वन मोर मार्बल आई हैव केप्ट हियर. तो वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास? ओके, व्हाट आई एम डूइंग नाउ, इसको हम करेंगे, एक लाइन डाल देंगे यहाँ दोनों सेंटर ऑफ मास के बीच में, और यहां से यहां तक एक लाइन डाल देंगे, फिर यहां से यहां तक एक लाइन डाल देंगे. ओके, नाउ आई एम जॉइनिंग द थ्री सेंटर्स ऑफ द थ्री मार्बल्स एंड दिस इज ए इक्विलैटरल ट्रायंगल अभी. और वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास नाउ? न्यू सेंटर ऑफ मास विल बी एग्जैक्टली हियर. कहां पर रहता न्यू सेंटर ऑफ मास? यहां पर, व्हिच इज टेकन एज C2. ओके, तो आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस नाउ. पहले सेंटर ऑफ मास यहां था, अब center of mass will become the centroid of an equilateral triangle because only two marbles were there, third marble is placed before above that. तो अब हम इसको क्या करेंगे, सेपरेटली इसके बारे में डिस्कस करेंगे हम, ताकि समझना थोड़ा इजी हो जाए. नाउ आई विल टेक द रेक्टेंगल सेपरेटली, सॉरी ट्रायंगल को सेपरेटली लेंगे हम, इसके बारे में बात करेंगे. ओके, ठीक है. तो पहले सेंटर ऑफ मास इधर था, अब सेंटर ऑफ मास इधर हो गया, तो हमको क्या करना है, ये डिस्टेंस मालूम करना है. वी हैव टू फाइंड आउट this distance. Okay, okay, so I have to find out this distance. How can you find out the distance? Very simple. There is a simple logic to find out this distance. C1 to C2 ये मालूम करना है ना. This is called as x shift now from here to here. Okay, this is called as x shift of center of mass from C1 to C2. अब इसके लिए हम क्या करेंगे, I will do something here. I will take one line like this, okay, and that line is going to be how much? ये कितना एंगल बनाएगा? 30 degrees, because this is 60, this is 60, and this is 60. Equilateral triangle बनाएगा because these radius are same now. Okay, this distance is diameter of a, this distance is diameter of a ring, this also diameter of a ring. So distance will be same. I am finding the shift here now. Okay, shift मालूम करना है, और for example, what is this distance? This is going to be the radius of the circle, isn't it? और यहाँ से यहाँ तक का distance क्या है? Radius. Now I have to find out what is x shift.
r. Okay, so what I am going to do now, क्या करना पड़ेगा मुझे उसको मालूम करने के लिए? Okay, simple thing is I will take tan 30 degrees. Tan 30 degrees is nothing but x shift this distance divided by r. So x shift is equal to r tan 30. So therefore x shift is nothing but r by root 3. Okay, r by root 3. Understood? If you know the radius of a circle, you can find out the shift of center of mass. Okay, अगर radius of the circle मालूम है तो you can find out the shift of center of mass. Hope you are understanding. यहाँ पर था center of mass of a rectangle. Okay, now you have cut one triangle and removed. तो center of mass will shift towards left side. Okay, because ये जो triangle का part है ना हम कट करके निकाल दे रहे. So कट करके निकाल दे रहे तो फिर क्या करेंगे इसको? You can take some other black color like this because you are removing that part, no? तो पार्ट अगर निकाल दिए तो यहाँ पर खाली जगह हो गई ना, तो शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज लेफ्ट साइड. तो व्हाट आर यू गोइंग टू डू नाउ? यू कैन डू वन थिंग. तो यहाँ पर क्या करेंगे? व्हाट इज द सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ट्रायंगल? इट इज अ सेंट्रॉइड. ठीक है, हाँ सेंट्रॉइड. सो यहाँ पर आप एक काम करो, आप लोग ये C1 ले लो, सेंटर ऑफ मास ऑफ ए ट्रायंगल को C2 ले लो. ठीक है, नाउ आई हैव टू फाइंड आउट दिस डिस्टेंस. यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको मालूम करना है. ओके, तो किस तरह मालूम करेंगे वो डिस्टेंस? इसके लिए हमको करना पड़ेगा, एक ट्रायंगल को इमेजिन करना पड़ेगा. ओके, यू हैव टू इमेजिन वन ट्रायंगल एंड दैट ट्रायंगल इज हैविंग बेस B बिकॉज दिस बेस इज आल्सो B ओनली. ब्रेड्थ ऑफ ए ट्रायंगल, ये तो बेस हो गया. और नाउ तो यहां से यहां तक एक हो गया अल्टीट्यूड. सो दिस इज गोइंग टू बी द अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल. ओके, तो व्हाट इज एन अल्टीट्यूड ऑफ दिस ट्रायंगल? ये तो ब्रेड्थ हो गया और ये लेंथ हो गया, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस हो गया L/2. सो व्हाट इज द अल्टीट्यूड ऑफ दिस? दिस इज गोइंग टू बी L/2 बिकॉज ये आधा पार्ट ना लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल का आधा हो गया अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल. सो अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रायंगल इज गोइंग टू बी L/2 एंड यू नो सेंट्रॉइड इज दिस वन व्हिच विल डिवाइड इन द रेशियो 1:2, 2:1. सो ये हो गया सेंट्रॉइड, इट डिवाइड्स 2:1. ओके, सो व्हाट इज दिस पार्ट नाउ? ये ऊपर वाला पार्ट क्या होगा? इट विल बी 2/3 ऑफ L/2. ओके, अगर कंफ्यूज हो रहा है तो एक काम करो, इट विल बिकम 2/3 ऑफ एन अल्टीट्यूड. ये वाला 2/3 ऑफ एन अल्टीट्यूड और ये वाला 1/3 ऑफ एन अल्टीट्यूड. ठीक है, तो हमको करना क्या है? ऊपर वाला पार्ट जो है सेंटर C1 है और नीचे वाला पार्ट C2 बोल के ले लिया ना, वहां से वहां तक का डिस्टेंस क्या होगा? इट विल बी 2/3 ऑफ एन अल्टीट्यूड. मींस 2/3 ऑफ एन अल्टीट्यूड. वेयर एज अल्टीट्यूड कितना है? थोड़ा लेंथ कितना है? L/2. तो 2/3 ऑफ एन अल्टीट्यूड का मतलब क्या है यहाँ पर? So this getting cancelled. So L/3 is the distance. समझ में आ रही है बात? So 2:1, 2/3 of the part and 1/3 of the part. So I have to take 2/3 of the altitude. Altitude कितना है? L/2 because it is the half of the length of rectangle. तो हमारा डिस्टेंस आ गया यहाँ पर कहाँ से कहाँ तक? C1 to C2 हमारा डिस्टेंस हो गया L/3. So अभी होगा ये L/3, 0. ओके, तो इस तरह हमको कोऑर्डिनेट्स मालूम करना है. So I got the coordinates here. Now what is the next step here? So this is x1, this is y1, this is x2 and this is y2. Now you have to find out the area of a rectangle because mass is equal to area into density na. So what is the mass of the rectangle? Mass is directly proportional to area. Okay, mass is directly proportional to area because density is constant. तो पहला वाला मास अगर ये है और दूसरा वाला मास जो ट्रायंगल है, पहला वाला रेक्टेंगल है, तो मास इज नथिंग बट रेक्टेंगल एरिया इनटू डेंसिटी ऑफ ए रेक्टेंगल. और रेक्टेंगल का क्या है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू डेंसिटी. ओके, सो दिस इज मास ऑफ रेक्टेंगल. देन व्हाट इज मास ऑफ ए ट्रायंगल? मास ऑफ ए ट्रायंगल इज हाफ इनटू बेस. बेस हो गया B और हाइट क्या हो गया? L/2. ओके, इनटू डेंसिटी बिकॉज मास इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया बोल रहा ना, तो वील राइट लाइक दिस. मास M2 is directly proportional to area A2. So this is the area of a triangle, is the area of a rectangle. So area of a triangle is how much? Half into base. Base is B and height is nothing but L/2. So A2 will become how much? LB/4 because half into base into length by 2 into 4. So that means what is M2? M2 is directly proportional to LB/4 or it is equal to how much? LB rho and this is LB rho. Okay. LB, this is LB/4. That's it. ये छोटा चीज याद रखना है हमको. तो mass will become this much. Here mass will become this much. Okay. तो same old formula. Center of mass is nothing but m1 x1 minus m2 x2 divided by
m1 माइनस m2, बिकॉज लार्जर बॉडी में से स्मॉलर बॉडी को निकाल दे रहे हैं हम लोग, तो इस तरह करना पड़ेगा उसको। x सेंटर ऑफ मास इस ये पार्ट 0 हो गया बिकॉज इट इज एट द ओरिजिन। तो m2 क्या है, lb रो बाई 4, ओके, हाँ, माइनस x2 क्या हो रहा है, x2 इज गोइंग टू बी l by 3, x2 इज टेकन एज l by 3। m1 माइनस m2, m1 क्या है, lb रो, माइनस m2 क्या है, lb रो बाई 4, ऐसे, ठीक है। तो x सेंटर ऑफ मास, यहां पर lb रो कैंसिल हो जाएगा, कॉमन करेंगे तो lb रो गेट्स कैंसिल, सो व्हाट इज लेफ्ट नाउ, माइनस l by 4 3 जा 12, l रहता, ये lb रो चलेगा तो l रहता ना, सो l by 12 डिवाइडेड बाय 1 minus 1 by 4 is nothing but 3 by 4, so 4 1 जा 4 3 जा 12, so minus l by 3 divided by 3 which is nothing but minus l by 9, okay। so center of mass मालूम करना है तो क्या है फॉर्मूला, शॉर्टकट फॉर्मूला क्या है यहाँ पर, if a triangle is removed from a rectangle, center of mass formula is this, shift of center of mass formula is this one, okay, this is going to be the shift of center of mass formula, okay। छोटा सा प्रॉब्लम भी करेंगे इसका थोड़ा समझने के लिए आप लोगों को कि हाउ विल बी द एप्लीकेशन हियर। If length is equal to 18 centimeters and breadth is equal to 9 centimeters, okay, and triangle is removed from a rectangle, find the shift of center of mass बोल के पूछ दिया, तो इसका सोल्यूशन क्या होगा, आसान सोल्यूशन क्या है, शिफ्ट ऑफ सेंटर ऑफ मास x शिफ्ट इज नथिंग बट माइनस l by 9, और लेंथ कितना है यहाँ पर माइनस 18 by 9 विच इज नथिंग बट माइनस 2 सेंटीमीटर्स, सो कितना पीछे आएगा, यहाँ पर आएगा और ये होगा माइनस 2 सेंटीमीटर्स, पीछे की तरफ शिफ्ट हो गए क्योंकि राइट साइड का मास काट करके अलग कर दे रहे ना, तो शिफ्ट हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल के बजाय आपको अगर से इफ यू यूज एग्जैक्टली स्क्वायर, ठीक है, से हम क्या करें, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज ये, इफ यू रिमूव द ट्राइंगल इन दिस वे, इस तरह ट्राइंगल को कट करेंगे कि इट इज हैविंग एग्जैक्टली, सो लाइक दिस यू आर कटिंग मींस दिस इज अ ट्राइंगल, एक स्क्वायर में से अगर ट्राइंगल को कट कर दिए तो व्हाट इज द आंसर हियर, सेम मेथड यू हैव टू फॉलो, तो इसको करना जरूर, इसको करेंगे तो फिर क्या आएगा, x शिफ्ट इज गोइंग टू बी माइनस a by 9 आएगा, ओके, a by 9 is going to be the answer, that's it, same, instead of b by 9 you'll get a by 9, that's it, because a is the length here and a is also the breadth, the same here, so like this you have to do the problem, okay। Let us stop the class today, okay। So dear students, today we shall discuss about the remaining part of rotatory motion। तो यहाँ पर सेंटर ऑफ मास के बारे में थोड़ा डिस्कस करें हम लोग, तो अभी रोटेटरी मोशन के बारे में डिस्कस करेंगे। तो रोटेटरी मोशन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो यहाँ पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में थोड़ा ब्रीफली डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम टॉपिक के अंदर जाएंगे। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ओके। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के बारे में डिस्कस करने से पहले थोड़ा हम इनर्शिया के बारे में जानेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय इनर्शिया इधर। तो यहाँ पर जनरल मीनिंग, सबसे पहले हम इस इनर्शिया को अपनी जिंदगी में कहां पर यूज करते हैं, इनर्शिया का मतलब क्या है, ओके। तो यहाँ पर इंग्लिश मीनिंग क्या है, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के मुताबिक, कैम्ब्रिज डिक्शनरी के मुताबिक इंग्लिश मीनिंग क्या है, लैक ऑफ एक्टिविटी एंड इंटरेस्ट, ओके। हम कोई भी काम नहीं कर रहे समझो, वी आर नॉट डूइंग एनी वर्क, वी आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू एनी वर्क, काम आगे ही नहीं बढ़ेगा, ओके। क्यों, वो काम करने में हमारा दिलचस्पी नहीं है, हमारा इंटरेस्ट नहीं है, वी डोंट हैव एनी इंटरेस्ट टू डू दैट वर्क एंड वी आर नॉट विलिंग टू डू वर्क, ओके। बेस्ट एग्जांपल इज एक्सरसाइज, एक्सरसाइज सुबह उठ के करने का मन ही नहीं करता, एक 10 मिनट भाग के आओ, बच्चों को बोला एक 10 मिनट ऐसे जाके भाग के आओ, बोले तो नहीं जाएंगे वो लोग, नहीं, बिकॉज दे डोंट नो द वैल्यू ऑफ एक्सरसाइज। तो इट इज अनविलिंगनेस टू गो टू डू सडन वर्क इज कॉल्ड एज इनर्शिया। बैठे रहना पसंद है, घंटे घंटे बैठ जाएंगे हम लोग, मगर कोई हरकत नहीं करेंगे, कोई एफर्ट्स लगाना पसंद ही नहीं है, उसको इनर्शिया बोलते हैं। हमारे अंदर भी इनर्शिया रहता, मगर थोड़ा अगर तकलीफ उठाकर, थोड़ा अगर शू पहनकर हम बाहर निकल जाएंगे, ग्राउंड में चले जाएंगे, तो पहले चलना शुरू कर दो, ऑटोमेटिक से जो है इनर्शिया की वजह से भागना शुरू कर देंगे, ओके। इनिशियली स्टेप्स थोड़ा मुश्किल है, एक बार तब इनिशियल स्टेप्स लेकर आगे बढ़ गए तो फिर यू विल बी डूइंग द रिमेनिंग पार्ट इजीली। तो यहाँ पर इनर्शिया का मतलब क्या है, अनविलिंग टू डू सर्टेन वर्क, आर नॉट इंटरेस्टेड टू डू सर्टेन वर्क इज कॉल्ड एज इनर्शिया, ओके। तो लॉस ऑफ मोशन के अंदर, न्यूटन लॉस ऑफ मोशन के अंदर फर्स्ट लॉ के अंदर इनर्शिया के बारे में डिस्कस करें। तो यहाँ पर देख लो इनर्शिया का मतलब क्या है। तो जस्ट इनर्शिया के बारे में बात करूं, इनर्शिया इज सेड टू बी द मेजर ऑफ मास, ओके। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनर्शिया, इट इज नथिंग बट मेजर ऑफ मास। सो यहाँ पर 300 kg है, यहाँ पर 30 kg है, किसके अंदर ज्यादा इनर्शिया है,
इनर्शिया मतलब मास जिसका ज्यादा है उसके अंदर इनर्शिया ज्यादा है, उसको धक्का लगाना बहुत मुश्किल। मेरे जैसे मोटे आदमी को जो है भागना बहुत मुश्किल, दुबला पतला आदमी आसानी से भाग जाता। सो ग्रेटर द मास द ग्रेटर द इनर्शिया। इनर्शिया इज द मेजर ऑफ मास बोल के बोलते हैं यहाँ पर। ओके, इनर्शिया का मतलब क्या, कोई चीज अगर रुक के है उसको धक्का मार के आगे बढ़ाना बहुत मुश्किल। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव द बॉडी, हेवी बॉडी। इट्स इजी टू मूव द लेसर मीन लाइटर बॉडी, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मूव द हेवियर बॉडी। जिस तरह उसको मूव करना मुश्किल है, एक मर्तबा हेवी बॉडी आगे निकल जाए ना, उसको रोकना भी मुश्किल है। you can't stop the heavier body also. That is called as inertia of motion. Inertia of rest का मतलब क्या, heavy body को धक्का मारना बहुत मुश्किल, it's very difficult. That is called as inertia of rest. एक मतलब हम धक्का मार के आगे निकाल दिया उसको, तो उसको रोकना भी मुश्किल, it's very difficult to stop the heavier body. That is called as inertia of motion. यहाँ पर moment of inertia का मतलब क्या है, what do you mean by moment of inertia? The best example I am going to give you. तो moment of inertia का best example क्या है मालूम, ये कुम्हार बोलते हैं इसको, a man who does pottery. ओके, तो पॉटरी के अंदर हम एक व्हील यूज करते हैं। ओके, तो एक व्हील यूज करें हम यहाँ पर पॉटरी के अंदर, वी आर गोइंग टू यूज वन व्हील हियर। ओके, तो यहाँ पर देख लो ये व्हील कैसा काम करता जी। हम लोग सबसे पहले जो है ना, एक व्हील के अंदर एक होल रहता, उसके अंदर एक लकड़ी रख के घुमाते, ऐसा बहुत तेजी से घुमाकर छोड़ देते। ओके, यहाँ पर हम जो व्हील ले रहे हैं ना, द व्हील विच यू आर गोइंग टू टेक इज हैविंग हेवियर मास। ओके, तो इट इज हैविंग मोर मास एंड ऑल्सो इट इज हैविंग रेडियस, because inertia is nothing but mass into radius whole square. Inertia is directly proportional to mass. Inertia is directly proportional to radius whole square. The greater the radius, the greater the moment of inertia. The heavier the body, the greater the moment of inertia. तो मैं इससे बोलना क्या चाह रहा हूं मालूम, एक व्हील अगर रेस्ट में है तो उसको घुमाना बहुत मुश्किल, क्योंकि उसका मास भी ज्यादा है, रेडियस भी ज्यादा है। एक मर्तबा उसको घुमा के छोड़ दिए, इट विल रोटेट फॉर लॉन्गर टाइम, it will rotate for longer time till you make the total part, it will be rotating. एक मर्तबा घुमा के छोड़ दो तो ज्यादा देर तक घूमेगा, that is called as greater inertia. किस greater inertia, greater moment of inertia means what, which body is having greater moment of inertia, the body which is very difficult to rotate, but once you rotate it is very difficult to stop also. That is called as moment of inertia in the case of rotation. Okay, moment of inertia means what, that is applied on this wheel also. We will take the wheel which is having higher inertia, higher moment of inertia. हम जो व्हील ले रहे हैं, यूज करें यहाँ पर पॉटरी के अंदर, दैट इज हैविंग ग्रेटर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। क्यों, इसको घुमाना बहुत मुश्किल, एक मर्तबा घुमा के छोड़ दो उसको, वो रुकेगा नहीं। until unless you keep some mud and prepare the whole part, it will be rotating. That is called as more moment of inertia. यहाँ पर you are taking the wheel which is made up of a heavy wood से बनाते हैं हम, इसके बजाय हम प्लास्टिक का व्हील ले लो। ओके, प्लास्टिक के व्हील को घुमाना इजी, ओके, और तुम उसके ऊपर मड डालकर पार्ट प्रिपेयर करने की कोशिश करो, पार्ट 20% भी नहीं बनेगा और रुक जाएगा, इट विल स्टॉप बाय इटसेल्फ, बिकॉज इसके व्हील विच इज मेड अप ऑफ प्लास्टिक इज हैविंग लेसर वेट, लेसर मास एंड इवन द रेडियस इज सेम। मास अगर कम है तो बगैर पार्ट बने के रुक जाएगा बीच में, बिकॉज इज हैविंग लेसर मास, लेसर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सो दैट इज नॉट यूजफुल फॉर अस। प्लास्टिक वाला व्हील हमें काम नहीं देगा। We have to consider the wheel which is heavier mass, which is having heavier mass, क्योंकि ज्यादा देर तक, that is called as moment of inertia। अभी समझ में आ गया ना आप लोगों को? ओके, सो दिस इज कॉल्ड एज अ व्हील। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, व्हील के बारे में बात करें। ओके, सो दिस इज अ व्हील। ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी देख लो यहाँ पर। ओके, तो वी आर टेकिंग अ व्हील एंड एज वेल एज अ डिस्क। हम क्या करें, हम एक व्हील ले रहे हैं, एक डिस्क ले रहे हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए व्हील क्या है, फॉर्मूला mr स्क्वायर, एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए डिस्क क्या है, फॉर्मूला mr स्क्वायर बाय 2। ओके, that means this is a disc and this is a ring. Okay, एक ring है, एक disc है। What does it mean? Moment of inertia of a disc is lesser than moment of inertia of a ring. Okay, तो ring का moment of inertia ज्यादा है, it's having a greater moment of inertia. That's the reason why we take tires for cycle, for bicycle, for scooters. जो भी vehicle हम ले रहे हैं, we will not take the disc, we take the wheel. साइकिल के अंदर हम देखें ना, व्हील कैसा रहता है, ऐसी से तरह रिंग रहता और उसको स्पोक्स रहते, आयरन स्पोक्स रहते उसको। व्हाई वी आर टेकिंग आयरन स्पोक्स व्हील, व्हाई डोंट वी टेक डिस्क फॉर साइकिल? बाइसिकल के अंदर डिस्क क्यों यूज नहीं करते? क्योंकि डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम है और रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ज्यादा है। व्हाट इज द बेनिफिट इफ यू टेक रिंग फॉर बाइसिकल टायर्स इंस्टेड ऑफ डिस्क? क्योंकि एक मर्तबा अगर हम पेडलिंग करके छोड़ दो तो बाइसिकल जो है, अगर हम चुप के खामोश बैठे भी रहेंगे तो बाइसिकल अपने आप जाएगी, समझे ना? ओके, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मोर फॉर ए व्हील which is made up of a ring. That's why
थोड़ा अगर वर्क करके छोड़ दो, खुद ब खुद बाइसिकल जाते रहेगी सामने विदाउट एनी एफर्ट्स। इनिशियली वी नीड सम एफर्ट्स, बट वंस यू मूव इट, अगर थोड़ा पेडलिंग करके छोड़ दो, चले जाएगी। इंस्टेड ऑफ रिंग, इफ यू टेक अ डिस्क फॉर प्रिपेयरिंग ए बाइसिकल व्हील, व्हाट हैपेंस, यू नो, अगर पेडलिंग करके छोड़ दिया ना तो फौरन रुक जाएगी। ओके, सो कंटिन्यूअसली एफर्ट्स लगाता रहना पड़ता है उसको। इफ इट इज मेड अप ऑफ ए डिस्क, अ बाइसिकल शुड बी अप्लाइड कंटिन्यूअस एफर्ट्स यू हैव टू डू। ओके, so that's the reason why we won't consider disc, we consider the made up of ring, wheel, that is called as moment of inertia. Okay, so we shall discuss। यहाँ पर बेस्ट एग्जांपल क्या है मालूम, ये फिटजेट्स बोलते हैं ना, फिटजेट्स बोल के इससे पहले बहुत फेमस हो गए थे। उसको हाथ में पकड़ के सब घुमाएंगे, एक बार घुमा दो, it will be rotating for 1 minute। the more costlier the longer it will rotate। अगर महंगा वाला फिटजेट खरीदो, उसको रोटेट करो, ज्यादा देर तक रोटेट होगा वो। the smoother and heavier it is, इसलिए क्या करते हैं, ज्यादा देर घूमने के लिए यू यूज मेटल्स एट द एडजस्ट। यहां पर मेटल्स यूज करते हैं, क्यों? मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ाने के लिए। मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर बढ़ गया तो फिटजेट्स जो है ना ज्यादा देर तक घूमेंगे, इट विल रोटेट फॉर लॉन्गर टाइम। ओके, बचपन में हम कंपटीशन करते थे, किसका फिट एक बार घुमा के छोड़ दिया, किसका ज्यादा देर तक घूमता, उसको जो है ना प्राइज मिलता, उसको जो है ना हम तालियां मारते, अरे तेरा कितनी देर तक घूम रहा हो। द सेम थिंग वी यूज फॉर इवन Beyblades। The Beyblade is also an instrument which the students, small children will play with that। Okay, what is that Beyblade? उसको पकड़ के खींच के घुमा दो, it will rotate for longer time। किसका जल्दी घूमना बंद कर देता, उन्हें हार गया, और किसका ज्यादा देर तक घूमेगा, उन्हें जीत गया। Because some of the Beyblades will rotate for longer time, that means it is having greater moment of inertia। जितना ज्यादा देर तक घूमेगा उतना moment of inertia ज्यादा है, उसका मतलब वही है। Hope you are understanding। Okay, so now here ring and disc, if you take what is the moment of inertia of a ring with respect to center of gravity? Just now I told you it is mr square। and what is the moment of inertia for a disc? I just told you it is mr square by 2। okay, now we shall discuss about what is the meaning of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem के बारे में बात करेंगे। okay, so what is the meaning of parallel axis theorem and perpendicular axis theorem? okay, तो अभी मैं क्या कर रहा हूं, एक रिंग ले रहा हूं, I am going to consider one ring। okay, so let us consider this is your ring, और रिंग के अंदर हम क्या कर रहे हैं, आई एम टेकिंग वन एक्सिस हियर विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द रिंग हियर। ओके, तो रिंग के बीच में से गुजर रहा है, सो आई एम टेकिंग वन एक्सिस हियर। ओके, नाउ दिस इज द सेंटर ऑफ मास, this is the center of gravity of a ring। okay, so this ring is having radius also, let us imagine it is having radius r, capital R। then what is the moment of inertia with respect to gravity? I just told you the formula is mr square। okay, तो ये हो गया axis which is passing through the center of gravity of a ring। now I want to apply this to find out the moment of inertia with some other axis which is passing through here। अगर कोई भी सेंटर ऑफ कोई भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है with respect to some other axis, and this is the axis which is passing through the center of gravity। now I am considering one more axis, यहां पर है, इस यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या है, you can just imagine to be x which is nothing but r। so दोनों एक्सिस का बीच का डिस्टेंस क्या है, x लेते हैं हम जनरली, and now in this case it is going to be the radius of the ring। so I am talking about the ring now here। okay, so I want to find out the moment of inertia with respect to some other axis। then what we have to do, we have to apply the parallel axis theorem। मैं briefly explain करूंगा, ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा। okay, because we don't have that much time, and that is also not necessary to derivation की इसकी जरूरत नहीं है, because you already know about this in the 11th class, so you don't go for the derivation here। if you want to find out the moment of inertia with some other axis, you just write I is equal to ig plus mx square। this is the formula for parallel axis theorem। okay, अगर some other axis से मालूम करना है तो सिंपल थिंग क्या है, ये फॉर्मूला यूज करेंगे हम, और विद रिस्पेक्ट टू सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमको पहले से ही मालूम है which is going to be mr square प्लस ओके, और नेक्स्ट क्या है, m x स्क्वायर, x के प्लेस x इज नथिंग बट r, सो mr स्क्वायर। सो विद रिस्पेक्ट टू सम अदर एक्सिस क्या हो रहा है यहाँ पर, इट इज गोइंग टू बी 2mr स्क्वायर। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला वी आर गोइंग टू यूज हियर। नाउ सो दिस इज पैरेलल एक्सिस थ्योरम। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर द केस ऑफ ए रिंग। ओके, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम क्या है यहाँ पर, उसको डिटेल से हम समझने की कोशिश करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम फॉर ए रिंग हियर। ओके, Today you will learn how to do this type of problems in a super simple way। पूरे शॉर्टकट्स बोलूंगा मैं, किस तरह हम इस तरह के प्रॉब्लम को करना है। ये टॉपिक बहुत सारे बच्चों को परेशान करने वाला टॉपिक है, मगर इसके लिए हमारे पास बहुत बेहतरीन प्लान है इसको समझाने के लिए। सो वी शैल डिस्कस अबाउट अकॉर्डिंग टू दैट प्लान हियर। ओके,
ओके ओके, यहां पर देख लो, ये परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का मतलब क्या है। ये देखो, ये मिडिल वाला जो रिंग है ना, ये मिडिल वाला जो एक्सिस है, इसको समझो आई जेड विच इज ऑल्सो इक्वल टू आई जी। हमको मालूम है इसके बारे में, विच इज नथिंग बट एम आर स्क्वायर। ओके, आई जेड एक्सिस बोलते हैं इसको, ठीक है। और इसको क्या बोलेंगे हम, आई एक्स बोल के बोलेंगे, एंड इसको क्या बोलेंगे, आई वाई बोल के बोलेंगे। सो आई वाई, आई एक्स एंड आई वाई विच इज इक्वल टू आई जेड। यहाँ पर आई जेड हो गया। तो यहाँ पर आई एक्स को क्या बोल के बोल सकते हैं, व्हाट कैन यू कॉल द अदर नेम हियर। इसको और एक नाम क्या दे सकते हैं हम लोग, you can also call it as id. It is passing along the diameter of the ring. ये भी along the diameter of the ring ही पास हो रहा है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, you can also call it as id. Moment of inertia along the diameter है ये, and this is called as perpendicular axis theorem. Okay, तो perpendicular axis theorem, what is it explaining? See यहाँ पर, according to, okay, perpendicular axis theorem, इस थ्योरम के मुताबिक क्या है जजमेंट, फाइनल जजमेंट क्या बोल रहा है थ्योरम, सी आई जेड विल बी इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। ओके, इसको मैं बेहतरीन एग्जांपल से समझाऊंगा आप लोगों को। आई विल गिव वन स्मॉल एग्जांपल हियर। सो लेट अस इमेजिन दिस टू बी अ रिंग हियर। ओके नो, ओके, तो ये रिंग है एंड दिस इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। इसको बोलते हैं आई जी, which is called as mr square. और ये जो है along the tangent in this direction perpendicular to the plane. So this is perpendicular to the plane. अभी हम इसके बारे में डिस्कस करें, हम इसका डेरिवेशन भी करके बताएं। तो ये अगर mr square है तो ये क्या हो गया, it is going to be 2mr square। अभी बोल दिया ना मैं। अभी हम क्या करें, मालूम along the diameter मालूम करें। if it is passing through the diameter and it is rotating, what is the moment of inertia हम मालूम कर रहे हैं। उसके बाद हम मालूम करेंगे along the tangential to the ring and that to parallel to the plane of the ring। इसको बोलते हैं perpendicular along the tangent, perpendicular to the plane of the ring। ये plane of the ring है, ये perpendicular है, और ये क्या है, tangentially चाहिए, and that is going to be parallel to the plane। ये भी parallel along the parallel to the direction of the plane of the ring है। ओके, तो हम मालूम करेंगे, ये हो गया उसका पहला वाला। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, यहां पर ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो इसका मतलब क्या है मालूम, अगर कोई भी रिंग को अगर ये आई एक्स है और ये आई वाई है, बोथ आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर कोई रिंग को इस एक्सिस से हम घुमा रहे और उसके बाद इस एक्सिस से घुमा रहे, ये दोनों का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर ऐड करेंगे, इट विल बी एक्जैक्टली इक्वल टू अलोंग द आईजेड, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द आईजेड। दैट इज द मीनिंग ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो यहां पर आईजेड का मतलब क्या है, आईजेड इज नथिंग बट IG and IX is nothing but along the diameter and IY is also along the diameter. This implies that 2ID is equal to IG and IG का मतलब क्या है, 2ID is equal to mr square which is already known to us. तो IG क्या हो गया, IG has become mr square by 2. Okay, so this is called as mr square by 2 थोड़ा। Okay, तो ये हो गया mr square by 2। इसका मतलब क्या, ओके, तो अच्छी तरह से देख लो, दिस इज कॉल्ड एज mr स्क्वायर एंड दिस इज कॉल्ड एज 2mr स्क्वायर। अभी डायमीटर आ गया हमको mr स्क्वायर बाय 2। ओके, अब हमको टेंजेंशियली एंड पैरेलल टू द प्लेन मालूम करना है। ओके, सो लेट मी ड्रॉ दैट इन अ डिफरेंट एंगल एंड टू शो एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। ये क्लास मिस मत करो, क्योंकि इतना कंफ्यूजन टॉपिक को मैं आसानी से समझाने की कोशिश कर रहा हूं आप लोगों को। ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ ब्यूटीफुल वे। अगर ये समझ में आ गया तो रोटेटरी मोशन का 50% काम हो जाता है। देखो, ओके, 50% of rotatory motion will be finished if you understand this one. Okay, okay, अभी देखो, so this is a ring। अभी along the diameter हमको आ गया, क्या है along the diameter, this is going to be the along the diameter and ये क्या है, center of gravity से ही पास होगा, मगर पैरेलली पास हो रहा है along the center of gravity parallel to the plane of the ring। ये क्या है, along the center of gravity perpendicular to the plane of the ring। डिफरेंस समझने की कोशिश करो। सो along the diameter क्या हो रहा है, ये mr square by 2 हो गया। नाउ along the tangent हमको मालूम करना है, और ये डिस्टेंस क्या है, x इक्वल टू r। ये दोनों का बीच का डिस्टेंस क्या है, x इक्वल टू r। नाउ along the tangent parallel axis theorem। सो अकॉर्डिंग टू पैरेलल एक्सिस थ्योरम, IT is nothing but IG plus mx square। ये भी IG होता है। ओके, IG but parallel to the plane, IG but parallel which is nothing but ID। ओके, तो I tangent हमको मालूम करना है, IG तो हमारे पास तैयार है which is nothing but mr square by 2 and x equal to r which is also called as mr square।
Therefore along the tangent क्या हो रहा है यहाँ पर, आंसर हमारा क्या आ रहा है, IT is nothing but 3/2 mr square. Okay, 3/2 mr square. So let us see how many formulas are there. Okay, तो ID G भी आ गया, ID भी आ गया हमको. ID कितना था ID, तो यहाँ पर ID is nothing but mr square by 2. Okay, so these are the three very important formulas you have to remember. अब मैं एक एक फॉर्मूला आपको दोहराने की कोशिश करूंगा by taking certain example of this ring here. अभी देखो इसको अगर रिंग समझे हम, कोई अच्छा इंस्ट्रूमेंट है तो दिखा देते हम. ठीक है, ये अगर रिंग है समझो, तो ये क्या हो गया, विच अलॉन्ग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ रिंग विच इज कॉल्ड एज mr स्क्वायर. ये हो गया 2mr स्क्वायर, ये हो गया mr स्क्वायर बाय 2. ओके, अलॉन्ग द डायमीटर क्या है, mr स्क्वायर बाय 2. अलॉन्ग द टेंजेंट क्या है, 3/2 mr स्क्वायर. अच्छी तरह से देख लो, दिस इज mr स्क्वायर, दिस इज 2mr स्क्वायर एंड दिस इज mr स्क्वायर बाय 2. ओके, mr स्क्वायर बाय 2. अलॉन्ग द टेंजेंट क्या है, 3/2 mr स्क्वायर. ओके, होप यू हैव अंडरस्टूड. आई हैव कंप्लीटली फिनिश्ड अबाउट द रिंग. रिंग के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट मैं समझा दिया. ओके, सो लेट अस गो अहेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ डिस्क हियर. ओके, हम डिस्क के बारे में बात करेंगे अभी. ओके, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिस्क नाउ. Okay, so I'm going to take one disk here. So if you consider this as a disk here now, अगर ये disk है समझो, so this is a disk here, and it is along the center of gravity. What is the formula for a disk along the center of gravity? mr square by 2. Okay, ये हो गया mr square by 2. और with respect to some other axis हमको होना है. I want with respect to this axis, okay, which is along the edge of the disk. Okay, so what is the formula you are going to apply for this? ये axis से होना है तो हमको करना क्या है, it is nothing but Ig plus mx square according to parallel axis theorem. और ये डिस्टेंस हमको मालूम है, which is nothing but x equal to r. Okay, so Ig क्या है अभी यहाँ पर, mr square by 2 plus x equal to r. The distance between the two axes is nothing but mr square, so which is nothing but mr square. 3/2 mr square हो गया. Okay, 3/2 mr square is going to be our formula for this. Okay, तो यहां से अगर से सेंटर ऑफ ग्रेविटी से अगर कोई चीज पास हो रही, स्पेशली फॉर डिस्क. ओके, और डिस्क एंड रिंग इज समवट डिफरेंट. रिंग का फॉर्मूला क्या था, ये यहां पर इट वाज mr स्क्वायर, मगर डिस्क का फॉर्मूला क्या है, mr स्क्वायर बाय 2. एंड रिंग का फॉर्मूला क्या था, यहां पर mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर था, वहां पर 2mr स्क्वायर इट वाज फॉर रिंग. फॉर डिस्क हाउ मच इट इज, mr स्क्वायर बाय 2 प्लस mr स्क्वायर. देखो आज जो कॉन्सेप्ट पढ़ा हूं, ये अगर कर लिया ना, 30 to 40 प्रॉब्लम्स आसानी से उड़ा दे सकते हैं आप लोग. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के अंदर कोई भी वो प्रॉब्लम इजी से 20 to 30 प्रॉब्लम्स आराम से कर सकते हैं आप लोग, अगर ये कॉन्सेप्ट आज मैं जो समझा रहा हूं ना आसानी से समझेंगे तो फिर. ओके, सो ये हो गया 3mr स्क्वायर, आई मीन 3mr स्क्वायर बाय 2. ओके, नाउ फॉर दिस सेम रिंग आई हैव टू डिस्कस okay. Now I am considering the disk also, disk only, and now we shall discuss about along the diameter. Along the diameter किस तरह मालूम करेंगे, इसका थोड़ा हम समझने की कोशिश करेंगे पर यहाँ पर. Okay, now some other, these two are the perpendicular, I mean axis. यहाँ पर दो axis ले रहे हैं हम लोग. Okay, अब अच्छी तरह से देख लो यहाँ पर, this is called as Ig which is nothing but mr square. Okay, इसको क्या बोल सकते हैं हम, Iz भी बोल सकते हैं. Okay, this is also called as Iz and this is Ix which is nothing but along the diameter because this line is passing along the diameter. Okay, तो इसको क्या बोल सकते हैं, Iy which is nothing but Id which is also passing along the diameter. So Ix Iy is equal to Ig. Okay, that is called as perpendicular axis theorem. So perpendicular axis theorem क्या बोल रहा है, Iz is equal to Ix plus Iy. Okay, तो Iz का मतलब क्या है, Iz का मतलब है Ig. So Ix का मतलब क्या है, Id. Okay, और ये भी Id है, ये भी Id है. So it is going to be Id. So it is going to be 2Id is nothing but Ig. Okay, for a disk, center of gravity passing through the
एक्सिस इज कॉल्ड एज आई जी इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये एम आर स्क्वायर हो गया। तो 2id इज इक्वल टू आई जी क्या था, एम आर स्क्वायर बाई 2। फॉर ए डिस्क, फॉर ए रिंग इट वाज ओनली एम आर स्क्वायर, जस्ट फाइंड द डिफरेंस हियर नाउ। अभी id क्या हो गया यहाँ पर, id विल बिकम एम आर स्क्वायर बाई 4। ओके, वही रिंग का अगर लेते थे तो क्या था, इट वाज जस्ट आई जी एम आर स्क्वायर, यहाँ पर 2id इज इक्वल एम आर स्क्वायर था, id इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। सो id क्या था यहाँ पर, एम आर स्क्वायर बाई 2 था, मगर यहाँ पर क्या हो रहा, id वाज एम आर स्क्वायर बाई 4। ओके, सो विद दिस इसको भी साइड में ले लेंगे। अभी हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। ओके, तो इसी डिस्क को हम थोड़ा ऐसा क्रॉसली देख रहे थे, अब इसको ऐसा देखेंगे हम। जस्ट वी वर सीइंग द साइड व्यू, ये क्या था, ये साइड व्यू था, ठीक है ना, दिस वाज ए साइड व्यू। और जो हम देख रहे हैं ना यहाँ पर, इट इज अ टॉप व्यू, मतलब ऊपर से देख रहे हैं हम, साइड से नहीं देख रहे, रिंग को ऊपर से देख रहे हैं। तो ऊपर से देखेंगे तो क्या समझ में आता हमको, दिस इज वन एक्सिस, दिस इज अनदर एक्सिस। ओके, तो वी हैव टू अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हियर, ठीक है। अब देख लो यहाँ पर क्या हो रहा, ऑलरेडी अलोंग द डायमीटर, दिस इज कॉल्ड एज अलोंग द डायमीटर, हमको कितना आया था अलोंग द डायमीटर, इट वाज एम आर स्क्वायर बाई 4, it was m r square by 4. Now along the tangent होना है, and you know this distance x equal to r, radius of the, okay, it was the radius of the disk here. Okay, तो अभी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। it होना है तो क्या करेंगे हम, ig, ये along the diameter पास हो रहा, फिर भी this point is called as center of gravity. So this is passing through the center of gravity but parallel to the plane. Previously it was passing perpendicular to the plane. Difference याद रखो, एक ऐसा और एक ऐसा। It is also passing through the center of gravity. This is also passing through the center of gravity. ये perpendicularly था, ये parallelly है, ये parallel to the plane of the disk है ये। So this is nothing but ig plus mx square. Okay, so along the tangent and that too parallel है यहाँ पर, along the center of gravity parallel. So parallel मतलब ये वाला formula यूज करेंगे यहाँ पर, m r square by 4 plus x equal to r, which is nothing but m r square here. Okay, so tangentially क्या होगा यहाँ पर, 5 by 4 m r square. Okay, तो ये हो गया सारा का सारा डिस्क का स्टोरी। ओके, ये पूरा का पूरा डिस्क का स्टोरी है, ये हम इसको डिस्क समझेंगे। ओके, तो इफ यू कंसीडर दिस एज अ डिस्क, अभी हम डिस्क के बारे में बात करेंगे। ओके ओके, लेट अस टेक दिस एज अ डिस्क हियर। ओके, अब थोड़ा समझो यहाँ पर, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से कोई एक्सिस पास हो रहा तो हम उसको क्या बोलेंगे, एम आर स्क्वायर बाई 2 बोलेंगे, और सम अदर एक्सिस से पास हो रहा तो क्या बोलेंगे उसको, 3/2 एम आर स्क्वायर। तो एक तो हो गया एम आर स्क्वायर बाई 2, और एक क्या है, 3 एम आर स्क्वायर, सम अदर एक्सिस 3 एम आर स्क्वायर बाई 2। अलॉन्ग द डायमीटर अगर ले रहे तो क्या होता है यहाँ पर, अलॉन्ग द डायमीटर अगर ले रहे, इट इज पासिंग अलॉन्ग द डायमीटर, क्या आ रहा है, एम आर स्क्वायर बाई 4 आ रहा, ये हो गया एम आर स्क्वायर बाई 4। अलॉन्ग द टेंजेंट क्या हो रहा है, ये इट इज गोइंग टू बी 5/4 एम आर स्क्वायर। ओके, इज गोइंग टू बी 5/4 एम आर स्क्वायर। ओके, ये अलॉन्ग द डायमीटर है 5/4 एम आर स्क्वायर, ठीक है, ये एम आर स्क्वायर बाई 4। अच्छा, पहले से मैं एक बार दोहरा देता हूँ पूरे के पूरे फॉर्मूलास। अगर ये रिंग है, अगर रिंग है तो क्या है इसका फॉर्मूला, this is m r square and this is going to be 2 m r square and this is going to be m r square by 2, m r square by 2, and this is going to be 3/2 m r square for a ring. Okay, तो हम डिस्क के बारे में बात करेंगे। तो अगर ये डिस्क है तो दिस इज कॉल्ड एज एम आर स्क्वायर बाई 2 विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, और ये डिस्क का साइड में क्या है, ये 3/2 एम आर स्क्वायर बोल के बोले हम, 3/2 एम आर स्क्वायर। अलॉन्ग द डायमीटर क्या है, एम आर स्क्वायर बाई 4 है, और अलॉन्ग द टेंजेंट क्या है, इट इज गोइंग टू बी 5/4 एम आर स्क्वायर। आई थिंक यू अंडरस्टूड कंप्लीटली अबाउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर अ रिंग एंड डिस्क। ओके, और रिंग और डिस्क के बारे में 100% समझ में आ गया होगा अभी। ओके, अगर समझ में आ गया तो अभी ये प्रॉब्लम हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। अब देख लो अच्छी तरह से, देयर आर 3 रिंग्स हियर। ओके, there are 3 rings which are connected like this. There is only one axis. Okay, so for this ring, what is the formula we are going to use? ये along the tangent है, perpendicular to the, sorry, parallel to the plane of the ring, along the tangent है, तो क्या formula use करेंगे हम इसको? Okay, it is the ring here. It is said that there are 3 rings here, no? 3 rings are there. So this is passing along the diameter. तो along the diameter मतलब इसका formula क्या है, ring का along the diameter, along the diameter इसका फॉर्मूला है m r square by 2।
रिंग का बोल रहा, इट्स अ रिंग अबाउट, इट्स आई एम टॉकिंग अबाउट द रिंग। और ये क्या है, अलोंग द टेंजेंट अगर है तो व्हाट इज द फॉर्मूला, 3/2 mr square, and this is also 3/2 mr square. Okay, so along the tangent parallel to the plane, mr square by 2, 3/2 mr square, 3/2 mr square. So what is the net moment of inertia? You just add them, ये तीनों को ऐड करना पड़ेगा। What is that, mr square by 2 plus 3/2 mr square plus 3/2 mr square. Okay, so totally this is your formula. अभी ये तीनों को ऐड करेंगे नेट, तो डिनोमिनेटर में 2 रहेगा और यहाँ पर mr स्क्वायर रहेगा, ऊपर ऐड करेंगे 1 + 3 + 3 इज नथिंग बट 7, सो 7/2 mr स्क्वायर इज गोइंग टू बी आवर आंसर। ठीक है, तो ये देखो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन। ओके, सो व्हाट इज द करेक्ट ऑप्शन हियर, योर करेक्ट ऑप्शन इज डी ऑप्शन। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पर। ओके, बिकॉज यू आर गेटिंग 7/2 mr स्क्वायर। नेक्स्ट यू सी, अगर हम तीनों के तीनों डिस्क ले लिए तो क्या होता। सो व्हाट इज द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर ए डिस्क विच इज पासिंग थ्रू द डायमीटर, अलोंग द डायमीटर अगर पास हो रहा तो व्हाट इज आवर फॉर्मूला। आई जस्ट टोल्ड यू फॉर ए डिस्क अलोंग द डायमीटर इट इज गोइंग टू बी mr स्क्वायर by 4, एंड अलोंग द टेंजेंट पैरेलल टू द प्लेन ये क्या है 5/4 mr स्क्वायर। अभी मैं डिस्कस करा इसके बारे में, और ये भी क्या है 5/4 mr स्क्वायर, इजंट इट। ठीक है, अभी नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है तीनों का। How are you going to find out the net moment of inertia? ये तीनों को ऐड करेंगे, 5 + 5 is nothing but 10, 10 + 1 is 11, so therefore 11/4 mr square is going to be our final answer. ठीक है, नेक्स्ट अभी देख लो, हेलोस्फीयर बोल के बोलो। अगर ये हेलोस्फीयर है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा। हेलोस्फीयर के बारे में हम बात नहीं करें। सो हेलोस्फीयर के अंदर क्या रहता, वी शैल डिस्कस अबाउट द हेलोस्फीयर एंड अ सॉलिड स्फीयर। फॉर एग्जांपल, you just imagine this is a halosphere. Okay, halosphere के अंदर अगर हम ले लिए कंसिडर करें तो we didn't discuss about the halosphere. This is the axis which is passing through the center of gravity of a halosphere. Okay, अगर यहां से पास हो रहा moment of inertia, this is center of gravity. For a halosphere what is the formula, you know, 2/3 mr square. Okay, 2/3 mr square, understood, for a halosphere. See, we can't apply perpendicular axis theorem for a halosphere because it's a 3-dimensional figure है ना। अगर कोई रिंग होता, कोई डिस्क होता, तो हम इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। IX IY = IZ बोल कहां यूज कर सकते हैं इसको। इट्स अ स्फीयर, 3-डायमेंशनल बॉडी। देखो 3-डायमेंशनल बॉडीज के अंदर स्फीयर हो, सॉलिड स्फीयर, हेलोस्फीयर, व्हाटएवर इट मे बी, वी कांट अप्लाई परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, ओनली पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं यहां पर। तो अभी क्या करेंगे, विद सम अदर एक्सिस अगर ले रहे हैं तो व्हाट आर द थिंग यू आर गोइंग टू अप्लाई हियर। अगर सम अदर एक्सिस अगर ले रहे तो व्हाट इज देयर नाउ, x = r हो गया ना ये डिस्टेंस। ओके, सो सम अदर एक्सिस मालूम करना है। व्हाट इज द फॉर्मूला यू गोइंग टू अप्लाई, सेम ओल्ड फॉर्मूला, IG + mx स्क्वायर। ठीक है, IG + mx स्क्वायर। सो यहां पर I = IG, IG का मतलब 2/3 mr स्क्वायर प्लस x = r विच इज नथिंग बट 1 more mr स्क्वायर इज देयर। सो यहां पर क्या हो गया 5/3 mr स्क्वायर। ओके, तो क्या है ये, along the tangent आके 5/4 mr स्क्वायर, along the diameter आके 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, सो टेंजेंट अगर है तो 5/3 mr स्क्वायर, अगर ग्रेविटी से पास हो रहा, सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा तो 2/3 mr स्क्वायर। ठीक है, एंड द सेम फॉर्मूला वी आर गोइंग टू अप्लाई हियर। अब ये देखो यहाँ पर सेंटर ऑफ ग्रेविटी से पास हो रहा और ये टेंजेंट फॉर दिस टू दिस टेंजेंट इट इज सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मतलब ये वाला फॉर्मूला इधर अप्लाई करेंगे तो क्या होता, तो इसके लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये हो गया 2/3 mr स्क्वायर, और ये दोनों को अलोंग द टेंजेंट है ना, तो अलोंग द टेंजेंट मतलब ये वाला 5/3 mr स्क्वायर, तो ये हो गया 5/3 mr स्क्वायर, और ये भी हो गया 5/3 mr स्क्वायर। ओके, तो ये तीनों को ऐड करेंगे तो फिर हमारा क्या होगा आंसर। सो दिस इज जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग दिस एप्लीकेशन। सो फॉर दिस प्रॉब्लम, ये सारे प्रॉब्लम्स है, मैं क्वेश्चन में लिखा, डायरेक्टली डायग्राम यूज करके एक्सप्लेन कर रहा हूं। व्हाट इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐड ऑल दिस 3, 5 + 5 is 10, there is nothing but 12. So 12/3 mr square, which is nothing but 3 1s 3 4s 12, 4 mr square is going to be our answer. Okay, this is a solid sphere. Okay, this is a halosphere. अब बात करें तो halosphere है, अगर solid sphere है तो क्या होता, if it is a solid sphere what happens, so what are the basics of a solid sphere, अगर solid sphere हम ले रहे तो क्या होता है, यहाँ पर देख लेंगे। Okay, let us imagine this is a solid sphere.
ओके, सो दिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला क्या है? 2/5 mr². ये तो कांस्टेंट फॉर्मूला है, इसको याद रखना पड़ेगा. इसका डेरिवेशन आईआईटी में रहता, अपन को नीट वालों को जरूरत नहीं है ये सब. ओके, सो व्हाट इज द फॉर्मूला विद सम अदर एक्सिस? यू शुड नो दैट x इक्वल टू r हियर. ओके, ये वाला डिस्टेंस x इक्वल टू r व्हिच इज नथिंग बट ig प्लस mx². देखो अब ये जो है ना 3-4 घंटे का लेक्चर मैं एक ही घंटे में समझा दे रहा हूं. आप लोग 3-4 घंटे लगते हैं इसका क्वेश्चन डाल के सब. मैं ब्रीफली एंड कंसाइजली एंड जो नीडेड है वही बोल रहा हूँ, एक्स्ट्रा नहीं बोल रहा हूँ. जो बच्चों को सिर्फ 120 मार्क्स आने का मकसद है वो लोगों के लिए बेस्ट है ये. सो I इज इक्वल टू IG. IG इज हाउ मच? 2/5 mr² प्लस mr², बिकॉज x इक्वल टू r है ना. तो व्हाट इज दिस? अलोंग द टेंजेंशियली, दिस इज अलोंग द टेंजेंट, दिस इज गोइंग टू बी 7/5 mr². ठीक है. ओके, सो इफ दिस इज द फॉर्मूला, दीज आर द फॉर्मुलाज रिक्वायर्ड फॉर ए सॉलिड स्फीयर. अगर ये फॉर्मुलाज अगर जरूरत है तो यहां पर प्रैक्टिकली हम इसको ये प्रॉब्लम है ये. अब इसको किस तरह सॉल्व करेंगे? व्हाट इज द नेट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर दिस? इसके लिए क्या है? अलोंग द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी. सेंटर ऑफ ग्रेविटी मतलब 2/5 mr². ओके, सो फॉर दिस 2/5 mr² इज द फॉर्मूला. और इसके लिए क्या है? इसके लिए जो है ना 7/5 mr² अलोंग द टेंजेंट. सो 7/5 mr² फॉर दिस वन. एंड इसके लिए भी क्या है? 7/5 mr². सो नेट क्या है? 7 + 7 इज नथिंग बट 14, और 14 + 2 इज नथिंग बट 16. So 16/5 mr² is going to be your formula for the case of a solid sphere. तो हम स्फीयर के बारे में, रिंग के बारे में बात करें, और क्या है? I have talked about रिंग, स्फीयर, डिस्क एंड ऑल थिंग्स. नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट द रॉड. ओके, एक रॉड के बारे में बात करेंगे. ओके, सो हाउ द रॉड इज गोइंग टू वर्क एंड रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है, ये हम बात करेंगे अभी. रॉड, आई एम टेकिंग ए रॉड हियर नाउ. So let me discuss about the moment of inertia of a rod here and some other axis also. Along the edge भी मालूम करेंगे, along the center of gravity भी मालूम करेंगे इसको. Okay. अभी देखो यहाँ पर, this is the center of gravity of a rod. Okay. और rod का लेंथ क्या है? Length of the rod is L. और अभी यहाँ पर ये जो डिस्टेंस है ना, ये दोनों का बीच का डिस्टेंस, how much is going to be the distance here? तो ये डिस्टेंस क्या हो गया? विच इज x इज नथिंग बट L/2. ओके, आधा लेंथ है ना ये दोनों एक्सिस का बीच का डिस्टेंस, ये IG है. और फॉर ए रॉड व्हाट इज द फार्मूला फॉर द रॉड? ml²/12 है. देखो रॉड का फार्मूला क्या है मालूम? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए रॉड व्हिच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी, इट इज गोइंग टू बी ml²/12. ओके, एंड विद सम अदर एक्सिस यू वांट टू फाइंड आउट व्हिच इज नथिंग बट IG प्लस mx². सो IG क्या है यहाँ पर? ml²/12 प्लस x के प्लेस में क्या है? x के प्लेस में L/2 है, ml²/4 होता है. ओके, तो यहां पर अगर दोनों को ऐड करेंगे तो विल बी गेटिंग ml²/3. सो दिस इज गोइंग टू बी आवर फार्मूला. ओके, सो नाउ इसके अंदर बहुत सारी चीजें, अगर थोड़ा डेप्थ जाएंगे तो फिर और थोड़ी चीजें समझना पड़ेगा अपने को. रॉड के अंदर अगर और थोड़ा डेप्थ गए तो फिर और क्या क्या चीजें इसको समझना पड़ता है अपने को. लेट मी डिस्कस अबाउट दैट. अगर इस दूसरा पैरेलल एक्सिस थ्योरम यहां पर, ओके, अब देखो अब तक ये तो हो गया सेंटर ऑफ ग्रेविटी का फॉर्मूला, और इसका फॉर्मूला क्या है? आई जस्ट टोल्ड यू ml²/12. नाउ इंस्टेड ऑफ एज लेने के बजाय हम कहीं और ले रहे हैं एक्सिस, और ये डिस्टेंस कितना है मालूम? x इक्वल टू L/4 ले रहे हैं हम. ओके, मतलब 1/4 ऑफ द लेंथ ऑफ ए रॉड, द लेंथ ऑफ द रॉड इज L. नाउ व्हाट इज द पैरेलल एक्सिस थ्योरम? इन दिस केस पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना है हमको. ठीक है, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह अप्लाई करेंगे? यहाँ पर द सेम ओल्ड फॉर्मूला IG प्लस mx² हियर. ओके, सो I इज इक्वल टू IG क्या है यहाँ पर? ml²/12 प्लस x के प्लेस में क्या है? L/4. सो ml²/4 4 जा 16. ओके, तो अभी इसको सिंप्लीफाई करना है. कैसा करेंगे सिंप्लीफिकेशन ये? तो 48 ले सकते हैं सेम इसका. 16 3 जा 3 6 जा 18 3 1 जा 3 4 48 12 4 जा 48. ओके, तो यहां पर क्या आ रहा? ml² अगर कॉमन कर दिए तो 12 और इसका एलसीएम ये है. 12 4 जा 48, 4 आएगा यहाँ पर. 16 3 जा 48, यहाँ पर 3 आएगा. ओके, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा अभी? सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद दिस एक्सिस इज गोइंग टू बी हाउ मच? 7/48 mr², सॉरी ml².
इस तरह मालूम करना है। ओके, और थोड़ा डेप्थ गए हम, अभी रिंग के बारे में बात करेंगे। वी शैल डिस्कस अबाउट द रिंग आल्सो। यहां पर हम एक रिंग ले रहे हैं। ओके, दिस इज अ रिंग। तो इन दिस रिंग विच वन एक्सिस इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी एज यूजुअल। थोड़ा हम अलग ढंग से इसको समझने की कोशिश करेंगे, थोड़ा डेप्थ में। दिस इज टेकन एज आई जी, हमको मालूम है फॉर ए रिंग इट इज एम एक्स एम आर स्क्वायर। ओके, इसके बजाय अभी देखो सम अदर एक्सिस हम बात कर रहे हैं, सम अदर एक्सिस विच इज नॉट अलोंग द एड्ज विच इज पासिंग विद द सम अदर पॉइंट यहां पर। ओके, यहां से पास हो रहा है। इफ द एक्सिस इज लाइक दिस, ओके, अगर इस तरह का एक्सिस हम ले रहे हैं तो क्या होता है, लेट अस सी। अभी यहां पर देख लो, ये डिस्टेंस है ना x इक्वल टू r/2 है। ओके, ये रेडियस है तो इसका आधा डिस्टेंस हम ले रहे हैं यहां पर, सम अदर एक्सिस। अब इससे मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करना है, तो क्या करेंगे अभी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम करने के लिए जस्ट IG प्लस mx स्क्वायर डालेंगे। वी राइट लाइक दैट। सो IG ऑल नो इट इज नथिंग बट mr स्क्वायर प्लस x इज नथिंग बट r/2। क्या करेंगे यहां पर mr स्क्वायर बाई 4। ओके, सो इट इज नथिंग बट 5/4 mr स्क्वायर। तो इस तरह करना पड़ेगा हमको, ठीक है। अभी ऐसा ही एग्जांपल एक डिस्क के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। एक डिस्क ले रहा हूं मैं, आई एम टेकिंग वन डिस्क। ओके, ओके, नाउ इफ दिस इज अ डिस्क हियर, इंस्टेड ऑफ टेकिंग अलोंग द एड्ज, हमें क्या कर रहा हूं, ये तो हो गया IG विच इज नथिंग बट डिस्क के लिए क्या फॉर्मूला था, mr स्क्वायर बाय 2 था। ओके, तो फॉर्मूला वाज mr स्क्वायर बाय 2 एंड दिस इज x इक्वल टू r/2। ओके, पूरा रेडियस अगर r है तो उसका आधा ले रहा हूं मैं, तो हम क्या करेंगे अभी, I इज इक्वल टू IG प्लस mx स्क्वायर। आई वांट टू फाइंड आउट द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू दिस एक्सिस। नाउ अभी क्या होगा आंसर, IG तो हमको मालूम है विच इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाय 2, x के प्लेस में r/2 विच इज नथिंग बट mr स्क्वायर बाय 4। पिछले वक्त क्या डाले थे हम, जस्ट रिंग था ना, तो रिंग था तो हम क्या करे थे, सिर्फ mr स्क्वायर डाले थे IG के प्लस। अगर अब यहां पर क्या है, डिस्क है ना, तो mr स्क्वायर बाय 2 डालेंगे बिकॉज इट्स अ डिस्क हियर। तो अभी क्या होगा, एलसीएम हो गया 4। ओके, सो 2 mr स्क्वायर प्लस mr स्क्वायर दैट इज I इज इक्वल टू 3 mr स्क्वायर बाय 4। ठीक है, तो ये हो गया डिस्क के बारे में। अब हम बात करेंगे हेलोस्फीयर के बारे में। ठीक है, आई एम टॉकिंग अबाउट ए हेलोस्फीयर। हेलोस्फीयर का मतलब मालूम ना आप लोगों को, टेनिस बॉल के ऐसा। ओके, हेलोस्फीयर मतलब टेनिस बॉल, हेलोस्फीयर। तो दिस इज द एक्सिस विच इज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अब मैं क्या करूं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी के टेंजेंशियल के बजाय थोड़ा बीच में ले रहा हूं डिस्टेंस। आई एम टेकिंग दिस डिस्टेंस हियर। ओके, ओके, now just see here, this distance is nothing but x equal to r/2 for a halosphere. Okay, तो ये तो हो गया IG for a halosphere। अभी मैं बोला 2/3 mr square। now with respect to some other axis I have to find out, then क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे। तो ये तो 3 डायमेंशनल फिगर है हेलोस्फीयर, इसको बॉल कैसा इमेजिन करना है, वो बॉल हम बोर्ड पे दिखा नहीं सकते ना, तो यू हैव टू इमेजिन लाइक दिस। सो I इज नथिंग बट IG प्लस mx स्क्वायर। तो IG क्या हो गया, 2/3 mr स्क्वायर प्लस mx स्क्वायर का मतलब m r स्क्वायर बाई 4। ठीक है, तो अभी 3 4 are 12। ओके, 8 mr स्क्वायर प्लस 4 3 are 12, 3 mr स्क्वायर, क्योंकि 3 4 are 12, 4 2 are 8। तो I इज नथिंग बट हाउ मच, 11 mr स्क्वायर बाई 12। ओके, ये हो गया फॉर्मूला। नाउ वी शैल डिस्कस अबाउट ए सॉलिड स्फीयर। अभी हम सॉलिड स्फीयर के बारे में बात करेंगे। सो दिस इज लेट अस इमेजिन टू बी ए सॉलिड स्फीयर। अगर ये सॉलिड स्फीयर हुआ तो क्या होता, I am taking one axis like this, another axis is just beside. Okay, तो सारा का सारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आप लोगों को आसानी से समझा दे रहा हूं मैं, ताकि आप लोगों को कोई टेंशन ना हो। बिकॉज
मेनी स्टूडेंट्स आर आस्किंग सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लीज सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूट्यूब में भी कमेंट्स पड़े हैं सर मोमेंट ऑफ इनर्शिया समझ में ही नहीं आ रहा, हालांकि इतना आसान टॉपिक है ये। ओके, सो फॉर ए सॉलिड स्फीयर क्या था फॉर्मूला, 2/5 mr² था। विद सम अदर एक्सिस हमको मालूम करना है, पैरेलल एक्सिस हम यूज करेंगे, विच इज नथिंग बट IG प्लस mx²। तो व्हाट इज IG हियर, 2/5 mr² प्लस mx² इज नथिंग बट mr²/4। ठीक है, तो यहाँ पर एलसीएम 5 4 20 ले लो। सो 5 4 4 2 8 mr² प्लस 4 5 20 5 mr²। ठीक है, ओके, सो I इज इक्वल टू दिस इज नथिंग बट 13 mr²/20। ओके, 13 mr²/20। okay, so this is about the moment of inertia. ओके, नेक्स्ट हम टार्क के बारे में बात करेंगे। टार्क, ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टार्क हियर? टार्क का मतलब क्या है? सिर्फ टार्क इज नथिंग बट द टर्निंग इफेक्ट। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल मैं देता हूं आप लोगों को। टार्क बोले तो क्या है, आई विल गिव वन स्मॉल एग्जांपल फॉर टार्क। यहां पर लेट अस टेक दिस इज वन बॉडी, ये बॉडी यहां पर है ऐसा। ओके, तो अगर मैं इस तरफ फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, आई एम अप्लाइंग अ फोर्स लाइक दिस सो दैट द बॉडी मूव्स इन ए स्ट्राइट लाइन। इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं फोर्स। फोर्स इज दैट नथिंग बट इट टेंड्स टू मूव ए बॉडी इन ए स्ट्राइट लाइन। अगर यही बॉडी जो है ना ये पॉइंट के पास फिक्स है और यू आर अप्लाइंग द फोर्स इन सच ए वे दैट इट इज रोटेटिंग लाइक दिस। ओके, यू आर अप्लाइंग ए फोर्स इन सच ए वे दैट सी दिस बॉडी इज फिक्स्ड एट वन एज, ये एज के पास फिक्स है और फोर्स अप्लाई करें जिसकी वजह से बॉडी टर्न हो रहा, देन इसको क्या बोलते हैं? टार्क बोलते हैं। ठीक है, सो टार्क इज नथिंग बट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ओके, दिस इज द डेफिनेशन। अगर इसको क्रॉस प्रोडक्ट में समझेंगे तो टार्क इज नथिंग बट R क्रॉस F बोलते हैं, विच इज नथिंग बट RF sin थीटा। ये हो गया टार्क का क्रॉस प्रोडक्ट बोलते हैं इसको। सो व्हाट इज दिस प्रॉब्लम एक्सप्लेनिंग? लेट अस डिस्कस अबाउट दैट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या एक्सप्लेन कर रहा है यहाँ पर देखेंगे थोड़ा अच्छी तरह से। ओके, ये बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं प्रॉब्लम, ऐसे प्रॉब्लम्स। ये 2021 का प्रॉब्लम है यहाँ पर। ये यूनिफॉर्म रॉड इज देयर विच इज ऑफ 200 सेंटीमीटर्स। तो ये रॉड के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। ओके, तो ये रॉड ले लो अच्छी तरह से। ओके, सो लेट अस सी दिस इज अ रॉड। व्हाट इज द लेंथ ऑफ अ रॉड? लेंथ ऑफ अ रॉड कितना है देखो अच्छी तरह से, 200 सेंटीमीटर्स। सो लेंथ ऑफ द रॉड कितना था? 200 सेंटीमीटर्स। ये वन कहां से उठा कर लाए हम लोग? ये वन इसका था 1/3। ठीक है, अभी देख लो, दिस इज अ रॉड ऑफ लेंथ हाउ मच? ये रॉड का लेंथ कितना है पूरा टोटल लेंथ? यहां से यहां तक टोटल लेंथ ऑफ द रॉड this length is nothing but it is 200 सेंटीमीटर्स। ओके, तो इसको थोड़ा, सो टोटल लेंथ यहां से यहां तक 200 सेंटीमीटर्स था, वो बोल दिया हमने। तो नाउ दिस इज ए रॉड। व्हाट इज द मास ऑफ द रॉड? द मास ऑफ 2 kg सस्पेंडेड। मास ऑफ द रॉड इज 500 ग्राम्स। ओके, 500 ग्राम्स इज नथिंग बट 0.5 kg बोल सकते हैं। अब ये रॉड का सेंटर ऑफ मास कितना है? 200 लेंथ है ना इसका, तो एग्जैक्टली यहां पर 100 के पास, ओके, एग्जैक्टली एट मिडिल मीन्स 100 के पास इसका वेट काम कर रहा है, इसका मास काम कर रहा है। कितना है ये? वेट ऑफ दिस स्केल कितना था? mg। ओके, एग्जैक्टली कितना था इसका वेट? 0.5 kg, बिकॉज 500 ग्राम्स बोल रहा ना। ये यूनिफॉर्म रॉड ऑफ लेंथ 200 सेंटीमीटर्स एंड मास 500 kg। ओके, 500 kg मतलब आधा kg, 500 ग्राम्स मतलब आधा kg हो गया। ओके, तो अभी क्या कर रहा है हमको मालूम? हाँ, द सम ऑफ द, यहां से ये तो वेज ले रहे हैं ना हम लोग, वेज के पास से मेजर करना पड़ता है। ओके, तो ये देखो यहाँ 0 है, 20 सेंटीमीटर के पास एक मास ऐड कर दिए। दिस इज अपियर टू बी वेरी कंफ्यूजिंग बट आई विल एक्सप्लेन इन सिंपल वे। मैं बहुत आसानी से समझने की कोशिश करूंगा इसका। तो वेज जो है ना यहाँ पर है, वेज कितने डिस्टेंस पे है? 40 सेंटीमीटर के पास वेज लगा दिया हम लोग। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस है ना 20 सेंटीमीटर है। 20 सेंटीमीटर के बाजू में
यहाँ पर एक मास ऐड कर दिए, मतलब ये 40 सेंटीमीटर से 20 सेंटीमीटर, ये बीच का डिस्टेंस क्या हो गया 20 सेंटीमीटर हो गया। ओके 20 सेंटीमीटर के पास एक मास ऐड कर दिए और 40 सेंटीमीटर के पास वेड्ज है। ओके 40 सेंटीमीटर के पास वेड्ज है और 160 सेंटीमीटर के पास ये और एक मास है। इसका मतलब ये वेड्ज के पास से ये डिस्टेंस कितना हुआ, 40 से यहां पर से यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा हम देखेंगे। So from here to here, what is the distance? Okay, so from 40 to 160, what is the distance? It is nothing but 12. This is nothing but 12 सेंटीमीटर। ठीक है, ओके अभी देख लो यहाँ पर एक मास ऐड करके वेड्ज के इस तरफ कौन से चीजें हैं, वेड्ज के उस तरफ कौन से चीजें हैं। जो वेड्ज है ना मिडिल में जो सपोर्ट कर रहा ना, फलक्रम बोलते हैं इसको, यहां से लेफ्ट साइड जो चीजें ले रहे हैं इसको बोलते हैं एंटी क्लॉकवाइज टार्क बोलते हैं, और जो वेड्ज से राइट साइड है उसको क्लॉकवाइज टार्क बोलते हैं। ओके तो टार्क एंटी क्लॉकवाइज इज इक्वल टू टार्क क्लॉकवाइज बोल के बोलते हैं हम लोग। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज दोनों सेम रहते हैं। तो लेफ्ट साइड कौन से टार्क यूज कर रहे हैं, टार्क का मतलब फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। फोर्स का मतलब यहां पर 2 kg काम कर रहा, you write 2 here, or you can write grams में ले लो 2000 grams into this distance कितना है 2000 into 20, okay is equal to लेफ्ट साइड सिर्फ एक ही है ना, ये एक ही है, फलक्रम के लेफ्ट साइड एक ही है, फलक्रम के राइट साइड स्केल भी आ गया और स्केल का कितना है यहाँ पर 500 ग्राम्स ले लो, इन टर्म्स ऑफ ग्राम्स में ले लेंगे, फिर चाहे तो हम कन्वर्ट कर सकते हैं 500 ग्राम्स। ओके सो दिस इज 500 ग्राम्स और ये 40 के पास है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ द स्केल कितना है 100 सेंटीमीटर के पास है, मतलब 40 से 100 का बीच का डिस्टेंस कितना है यहाँ पर, इट इज गोइंग टू बी 60 नो, 40 से 100 का बीच का डिस्टेंस क्या है यहां से। सो दिस फोर्स एंड दिस डिस्टेंस, दिस फोर्स, दिस वेट बाय दिस डिस्टेंस, दिस वेट बाय दिस डिस्टेंस, दिस वेट बाय दिस डिस्टेंस, ये दोनों जो है ना वेट्स के राइट साइड है, ये दोनों वेट्स के राइट साइड है, सिर्फ लेफ्ट साइड एक ही आ रहा ना। ओके तो यहां पर क्या करेंगे 500, ये फलक्रम से कितना डिस्टेंस है 60, 500 इंटू 60। ओके ये हो गया, प्लस यहां पर एक मास है यम और यहां से फलक्रम से कितने डिस्टेंस पे है 160 माइनस 40, ये 40 के पास है ना, यहां से कितना 160 माइनस 40 मतलब 120, तो इसको क्या करो यम इंटू 120 डाल दे सकते हैं इसको। ओके 120 तो ये कितना हो गया, ये 40,000 और ये 6 5 30,000 प्लस 120 इंटू यम बोल के डाल देंगे। सो 120 यम इज इक्वल टू कितना, ये 4000, 40,000 माइनस 30,000, सो देयरफॉर यम इज इक्वल टू कितना हो गया, ये 10,000 डिवाइडेड बाय 120। तो ये क्या क्या कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। अभी क्या बच रहा हमारे पास 1000/12 ग्राम्स बच रहा। अगर केजीज में कन्वर्ट करना है तो क्या करना है, इसको 1000/12 इंटू 1/1000 से डिवाइड करेंगे तो क्या बचेगा 1/12 बचेगा। सो 1/12 kg, सो फोर्थ ऑप्शन इज गोइंग टू बी आंसर। ओके